Yes, started. सुन सुन इधर एक सेकेंड सुन। हाँ, इसको वो करो ना। दरवाजा ये आ रहा है इसको। पोर्टलाइट इस पे डाल, पोर्टलाइट डाल दो। क्योंकि मैं चाय पे चर्चा करूँ ना तो मैंने कम रहे भविष्य करवा। अब ठीक है। आप उधर आओगे ना, हो जाएगा। तू उसको बोलने दे। Good morning. Welcome you all to today's seminar. Before we start the meeting, I request everyone to please raise for the institute motto followed by national anthem. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की thank you and welcome again friends. I again request members to come forward and take the front seat. Friends, as a chartered accountant, we all use Tally in our day-to-day professional life. But the real question is, are we
truly using its full potential? I think everyone will say no. Most of us know the basic features. Some of us know the advanced feature, but very few explore the hidden gems that can actually save time, improve efficiency, and enhance reporting quality. Friends, today's session is on power feature and hidden gems of Tally 7.0. Is going to uncover those lesser known but highly impactful tools that can transform the way we work. And to guide us through this powerful learning journey, we have with us an eminent speaker, CA Vandana Bhudia. And we all know वंदना जी के परिचय की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप में एक परिचय है। टेली जगत में आज इनका काफी नाम है, बट बिफोर सेइंग टू लाइन्स for her, I request our member CA Bhavesh Shah to please give a brief introduction of our speaker, क्योंकि ज्ञान की रोशनी से जो राह दिखा दे, जटिल विषय को भी जो सरल बना दे, ऐसी वक्ता का साथ हमें मिला है जो टैली के हर राज से पर्दा उठा दे। राहुल जी प्लीज। हो गया Hello. Good morning, everyone. Thank you, JP Brothers, again to give me an opportunity to introduce Vandana Bhudia. Vandana Bhudia is a partner having 37 years rich experience in accounts audit finance consultancy. She is trusted and respected figure in the professional landscape. She is a founder partner of Vandana Bhudia and Company. She has built a legacy and excellence through unwavering dedication and ethical practice and client solutions. She is known for her passion of continuous learning and specialized certifications in ISA, fraud detection and forensic audit, independent director certification, and AI first level of certification. And she is a peer reviewer also with the profession. She has been recognized by the Star Woman Year Award 2024 and honored by WRC regarding celebrating her exemplary contribution toward the field of accounting and finance. Through the leadership, knowledge sharing, Tally, even she is mentoring clients and professionals becoming power users of a Tally. She has a YouTube channel where she sharing the simplified Tally simplified by the Vandana Bhudia. Professional achievement has a very big, huge her profile. She has been co-opted member of WRC for 25-26 for Corporate Law and Governance Committee. She is a convener of Women's Excellence Committee. She is handling the coaching class committee of the GST PEM. Advisory member of Borivali CP Study Circle, committee member of Allied Law Representation Committee, past convener of Borivali CP Study Circle. She is a contributor at WRC committees, professional affiliations. She has a live member and a premier professional bodies like AIFTP,
AST, PEM, BCAs, CTC, MCTC, JCAF, inspiring and challenging the impact, and delivered more than 350 plus lectures and workshops across the India at ICA branch, study circuit and trade associations. Beyond the profession, she has founded IFRMD 3141 International Fellowship of Rotarian Musicians in 2017. She is currently served as the chairman of Educational Literacy of Rotary Club of India, Rotary Club of Borivali 2024-25. With this brief introduction, I welcome her with a It's really a brief introduction. जरा भी मोमेंटो को दे रहा है momento. Now, ऐसा तो नहीं है ना बाद में देंगे ना पहले प्रूव करो किसी को किसको बुला? जब साथ में आ जाओ और रिक्वेस्ट आइए रेडी दोनों आने आजा आजा देख जाना उसको चलिए हम आगे आ जाते जी हम भी आगे आजा आजा हाँ आप भी आइए आइए बेटा अरे आइए आइए रीना हाँ, क्या है देख ये तक डाला ही है आज लाला तू बीच में आ जा अजून एक मोबाईल वो क्या लाइव फेसबुक व्हाट्सएप जाना चाहिए ना Thank you. And thank you all the participants bearing with us. आप ही तो मालूम है कुरियर कर देना जाना है And then get to हाँ वहीं से जैसे आपको अच्छा लगे So thanks. My voice coming. I don't know क्योंकि मुझे चालू करना बोला गया था मैंने नहीं किया. Hello. Am I audible? वैसे मुझे माइक डबल हो जाए. Again I request some of you like to sit in the bench or back seats. क्योंकि ये इतना छोटा स्क्रीन रहेगा और टैली में अगर आप ऐसा लोडी कांच लेने जोड़े तो भी नहीं समझे. तो माय हम्बल रिक्वेस्ट एक तो यहाँ फर्स्ट रो में ना 5 सीट खाली है और मेरा फोटो अच्छा नहीं आएगा. फर्स्ट रो पकड़ लीजिए काफी सारे एक ही बात है देखिए आवाज 5 रो बाकी है सुपर चेयर बाकी है. हाँ देखो मेरा मैं क्यों ये सब बताती हूँ आपको. पहले तो ना फियर फैक्टर से बाहर आ जाइए तब और किसी को पता नहीं कौन कितना जानता है. तुम लोगों को भी पता नहीं है वंदना को क्या पता है और वो आज हमारे साथ क्या शेयर करेगी. शायद आपको पता नहीं हो जो लोग यहाँ पे आए हैं उन सबने टैली कभी ना कभी टच किया है अपनी लाइफ में और हमारे बैलेंस में टैली करते हैं. आई डोंट रिकलेक्ट क्योंकि हम बातें कर रहे थे तो हमारे बायोडाटा में ये बताया कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ. दिस इज दैट मेंशन. हाँ तो अभी ना बीच में मुझे खींच के आपको लाना पड़ेगा वापस टैली पे क्योंकि मैं ना चली जाती हूँ मोटिवेशनल स्पीकर की से तो आपको देखे आता है इसीलिए देखो लाइफ का बहुत अच्छा फंडा है. मैं रोज ना 8:30 बजे उठती हूँ बट आज मुझे बोला नहीं चैलेंज है आप आ जाइए तो हमने वो चैलेंज को पकड़ा. तो लाइफ एक्चुअली क्या होती है चैलेंज है और कभी मजा आता है. देखो हर सीए बनने वाले ना खुद में चैलेंज को एक्सेप्ट किया तभी सीए बना. दैट्स अ फैक्ट. नो वन कैन से कि मैं इतना होशियार था कि ऐसे ही बस गया पेपर दिया हो गया. नहीं. एवरी लाइफ हैज इट्स ओन चैलेंज. कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट हमने जेम्स नाम रखा है. लेकिन टैली के अंदर इतने सारे फीचर्स है जो हमने शायद यूज नहीं किए हैं. जैसे हम डे टू डे एक्सेल भी यूज करते हैं तो जब तक हमें किसी ने बता नहीं पाइवट टेबल कैसे यूज करना है. पाइवट तो वहीं पे था हमको पता नहीं था कि कैसे यूज करना है. करेक्ट या हमें उसकी वीडियो भी नहीं पता
तो आज मेरा फोकस क्या रहेगा? सबसे पहले मुझे आप लोगों से पूछना है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्रैवल टू टैली 7.0? माइग्रेट किया भी है डाटा? 6-7 लोगों ने किया है, यानी 6-7 लोगों के लिए रिपीटेशन होगा, बिकॉज जिन्होंने ट्रैवल कर लिया है 7 में, तो उनको 7 के फीचर्स पता है। ये आइडिया क्या होता है, मैं जब माइग्रेट करती हूँ नए फीचर्स में, जैसे आप आईफोन है तो जैसे ही नया फिर आएगा उसका मॉडल तो हम अपग्रेड करते रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर में भी जब अपग्रेड आता है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, जो कुछ मिसिंग होगा या कुछ एड ऑन्स आ रहे हैं और वो भी आपका अगर सब्सक्रिप्शन वैलिड है तो आपको फ्री में मिलता है, तो क्यों नहीं करने का? अगर आज मैं पूरे साल का एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट 6,750 जो भी मैं रिन्यूअल फीस सब्सक्रिप्शन भर रही, दैट टू मल्टी यूजर का, जो कि दूसरे लोग को उसका ज्यादा प्राइस भरना पड़ रहा है जो कॉर्पोरेट से, तो हमारी अगर इंस्टीट्यूट ने टाई अप किया है टैली के साथ, हमें सुविधा दी है, तो क्या हम उस प्रोग्राम का यूज करेंगे अपने भले के लिए और हमारे स्टाफ के भले के लिए? मोटा मोटा सी, I always think from the point of view as a chartered accountant, we have made up our mind that we are here to do audits, we are here to see the reports. Correct. There is nothing wrong in it. But at the end of the day, your staff needs training. अगर आप बाहर से कोई ट्रेनर बुलाओ, that is one part, जो कि बहुत मुश्किल होता है मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस में। थोड़ा 10, 15, 20 पार्टनर वाली फॉर्म रहती है, तो वहां पे एक ट्रेंड होता है कि महीने में एक सैटरडे हम लोग कुछ ना कुछ ट्रेनिंग सेशंस रखेंगे। So let's understand the ground कि जहाँ 2 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं, वो अपने 10-15 स्टाफ है, आर्टिकल से उन्हें नहीं सिखा पा रहा है, तो let's do yourself get educated, you learn certain things which will definitely you can transfer to your substack, और आप अच्छे से उनके साथ रेपो बनाएंगे तो आपकी लाइफ भी आसान हो जाएगी, क्योंकि more you know, more better you deliver. That's what the crux of the matter. Now 6 लोगों ने हाथ उठाए थे, अब पूछूंगी कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, तो बता पाएंगे नए फीचर, जस्ट टू नेम इट। भाई साहब We have just upgraded. Yeah, I'm not following a single feature. नहीं वही समझना था, बटन का तो दबा दिया। दबा दिया। So that's the good side. तो पर्पस कैलाश सर का क्या बोलते हैं, वसूल, मतलब आजकल सेशन रखने का जो इंटेंशन था, क्योंकि जब यहाँ पे एक भी इंसान को अगर नए फीचर्स नहीं पता है तो इट विल टर्न आउट टू बी वैल्यू एडिशन, कि हम, मैं हमेशा वही बोलती हूँ कि क्या मैं टैली को यूज कर रही हूँ या ऑपरेट कर रही हूँ, तो हमें उसको यूज करने पे जाना है। और मैं हमेशा बोलती हूँ हमें तो वाणिया चाहिए, मैं बनिया हूँ, मेरा क्या, मैंने पैसा दिया तो मेरा पैसा वसूल होना चाहिए, मैं उसको कैसे करूँ मेरे हाथ में है, या मैं खुद ट्रेन हूँ या मेरे बच्चे लोगों को ट्रेन करूँ या लोगों को ट्रेन करूँ। आज की तारीख में मैंने 20 साल टैली के अंदर, तो नाउ आई हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ टैली इवेंजलिस्ट, और मैं जब यहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ तो मैं खुद बोलती कि मैं टैली, मैं एज अ इवेंजलिस्ट 60 to 70% ही यूज करती हूँ, बाकी 30% करने के लिए ना मेरे पास टाइम है ना मुझे उतना वो समय मिलता है। तो जितना मैंने सीखा है, जो मैं डे टू डे प्रैक्टिस में मैंने लाया है, और जैसे मैंने सेशन लिए हैं, तो डे बाय डे जब हम सेशन लेते हैं, लोगों की क्वेरी आती है, तो हमारा ज्ञान भी बढ़ता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। व्हेन द पर्सन थ्रोज योर क्वेरी, तो मैं तो बोलती हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, you all start taking up one topic of your choice. उससे क्या होता है, तो आप उसमें एक्सपर्ट बनते जाओगे, और जैसे जैसे आगे नए स्पीकर्स भी लगते हैं स्टडी सर्कल को, तो स्टडी सर्कल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले हम अपने घर से ही चालू करेंगे, तो बाहर जाके इंस्टीट्यूट को हेल्प कर पाएंगे, है ना? हमारा नेचर बहुत क्लियर है कि देश ने हमारे लिए क्या किया वो नहीं बोलना है, तो इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए क्या किया नहीं बोलना है, हमने इंस्टीट्यूट के लिए क्या किया, खाली मेंबर बन गए, मेंबरशिप फीस भर दिया, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। लेट्स स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड आवर ओन प्रोफेशन। तो पहला काम है कि जो कन्वीनर्स लोग हैं या जो उनके भी सब स्टाफ हेल्प करते हैं, मेहनत करते हैं कि भाई अच्छे अच्छे स्पीकर्स को बुलाते हैं, तो वहां जाके अटेंड करना चाहिए। दैट्स माय मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, हम रियल टैली, मैं हमेशा रियल टैली ही दिखाती हूँ, पीपीटी पे थोड़ा कम जाती हूँ, बट नाउ इन द न्यू टैली 7.0 they have come out with Bharat Connect, Alt-Tab, जैसे कि एक्सेल में Alt-Tab फीचर्स है, वहाँ पे कंट्रोल फाइंड हम यूज करते हैं एक्सेल में टू सर्च एनीथिंग एनीवेयर अक्रॉस द एक्सेल। अब क्या हो गया है, टैली ने भी वो सेम फीचर दे दिया है कि टैली ने 4.0 में कंट्रोल F लाए थे, बट कंट्रोल F वाज स्क्रीन बेस्ड,
मतलब मैं डिस्प्ले अकाउंट लेजर करूंगी या मैं बैलेंस शीट की स्क्रीन पे हूँ और वहां पे मैं कंट्रोल फाइंड कर रही हूँ, जहां जहां मतलब मैं सेल्स रजिस्टर परचेज रजिस्टर में गई हूँ, पर्टिकुलर कोई रिपोर्ट के अंदर हो और फिर कंट्रोल फाइंड मार के फिल्टर, दैट वाज द फिल्टर कंटेनिंग जनरिक लेटर लाइक मैंने लिख दिया ट्रांसपोर्ट या मैंने लिख दिया 5635, जो भी फिगर लिखना है वो मैं वहां पे लिखती थी और वहां से मुझे जो मिलेगा वो मिलता था। अब उन्होंने देयर वाज अ डिमांड कि भाई हम रिपोर्ट में जाके क्यों ढूंढे, हमें अक्रॉस द कंपनी कहीं पे भी वो वर्ड दिखता है और सिमिलर मैच भी दिखता है, तो हमें वो आंसर मिलना चाहिए। तो फायदा क्या हुआ कि व्हेन इट कम्स ऑन अ कंपनी लेवल सर्च ना, तो मैंने जैसे ही एक कंपनी में वो सर्च किया, मैं F3 प्रेस करके दूसरी कंपनी में भी वो सर्च कर सकती, तो सर्च इंजन विल वर्क अक्रॉस द कंपनी। आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीचर। कभी कभी ना ऑडिट के टाइम पे पूछता नहीं है क्या सर्च करना है, कुछ भी कीवर्ड्स डाल के आप सर्च कर सकते हो। वो पूरा आपका कंपनी समझो 1 4 20 से है तो पूरा 20 से लेके सब कुछ लेके आता है, नहीं तो भी अपन एक्सप्लोर करेंगे कि वो कौन सा, मतलब इफ आई एम ओनली ऑन अ 25 26 तो 25 26 को ही लेके आता है, बट जितना मैंने उसको ऑब्जर्व किया था इट ब्रिंग्स अक्रॉस द डेटा बेस, अक्रॉस डेटाबेस, मतलब उसकी डेटा फाइल को ही सर्च कर रहा है, तो पीरियड स्पेसिफिक नहीं, मतलब अगर ट्रांजैक्शन 4 साल पहले भी हुई थी उस कंपनी के साथ तो वो थ्रो करेगा। ये मेरा वो खुद का एक सोच है जो मैं आपसे बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। एंड वी डोंट हैव मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं यहाँ से लेक्चर दे रही हूँ, आई होप द रिकॉर्डिंग वर्क्स। हम शेयर स्क्रीन में जाएंगे। और मैं ना कंफ्यूज हो जाती हूँ जब यहाँ आती हूँ तो। सबसे पहले मेरी ऑफिस ना मैंने आरडीपी के थ्रू चलाती हूँ। कल ही मैंने पीपीटी बनाया है बैठ के, टाइम ही नहीं, आज हमारा बीसीएससी का एनुअल इवेंट भी है उधर गुड़ीबली में, तो उसका ड्रामा प्रैक्टिस चालू है स्क्रीन पर ही है। अब आप क्यों देखो सबकी हालत ऐसी है, टेली में काफी सारे आइकन हैं क्योंकि आवर क्लाइंट मे नॉट बी ऑन द सेम पेज, राइट। आइडियली एक टिप दे देती हूँ, जो क्लाइंट्स ERP 9 में है अभी 25% डिस्काउंट चल रहा है रिन्यूअल्स का, पुश देम टू प्राइम एटलीस्ट, पुश देम टू प्राइम, क्योंकि प्राइम में आने से आपका लाइफ आसान होता है जब आप अच्छा नया चीज सीखते हो। अगर वो लोग नहीं सीखते हैं तो यू आर ओनली पेनलाइज्ड, नॉट द क्लाइंट। अंडरस्टैंड माय वर्ड्स, क्लाइंट इज नॉट पेनलाइज्ड, यू आर पेनलाइज्ड, बिकॉज अच्छी अच्छी चीजें आ गई है। जब हम AI की बात कर रहे थे फिर हम 9 में क्यों पढ़े हैं, एंड दैट्स नो सेंस। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ चेंज फॉर बेटर शुड बी ऑलवेज वेलकम। क्या वो एनहांस कर रहा है मेरी एफिशिएंसी को तो मुझे चेंज को रेकमेंड करना चाहिए बंदे को। सो अगर एडिट लॉग है तो वहां पे कितने लोगों को एडिट लॉग पता है? कॉर्पोरेट लॉ के लिए एडिट लॉग जरूरी है। MCA गाइडलाइन के हिसाब से आपको कंपलसरी, तो प्राइवेट लिमिटेड के आपके क्लाइंट ने आज तक नहीं किया, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज सादा प्राइस और एडिट लॉग एक ही प्राइस में अवेलेबल है, एक ही सिस्टम पे दोनों चल सकते हैं। आपको खाली डाउनलोड करके रखना है, ये सी आइकन अलग है और प्राइवेट लिमिटेड आप ओपन कीजिए इन एडिट लॉग सो दैट यू कैन राइट दैट क्या बोलते हैं रिपोर्ट में दैट द कंपनी इज हैविंग अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज अनटेम्पर्ड, ऑडिट ट्रेल इज अवेलेबल। और एडिट लॉग होने से क्या होता है कि एटलीस्ट यू एज ऑडिटर कैन अंडरस्टैंड कि वाउचर्स कभी कभी चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, ट्रेल आती है। गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग यू टू बी विजिलेंट बट नॉट द वॉचडॉग, वो भी मैं अभी भी स्टिल आई ऑफ द ओपिनियन। तो हमें ऑडिट ट्रेल मेंटेन किया है वही लिखना है, वो सही चल रही है वो लिखना है, एक अंदर जाके सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप स्टिल यू कैन गो विद दैट फिल्टर डेटा, क्योंकि आपका एक सैंपल साइज होता है, उसी हिसाब से आप ऑडिट करो। तो ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट जब भी करना है तो आप सैंपल साइज के हिसाब से कर सकते हो। सेकंड अगर हम बात करेंगे, एक तो मैंने ऑल्ट F बता दिया। सेकंड ब्यूटीफुल फीचर हैज कम इज बैकअप ऑन अ गूगल ड्राइव।
बैकअप हो ना गूगल ड्राइव, ताकि अभी क्या हो जाएगा कि वो बंदा गूगल ड्राइव पे बैकअप करेगा और वही मुझे भेज देगा एज अ ऑडिटर, तो मैं डाउनलोड करके उस पे काम कर सकती हूँ, तो ड्राइव कैन वर्क। अच्छा, अभी अभी वो सब फीचर्स जस्ट जस्ट आया आए है, हैं, तो तो आई आई हैव नॉट नॉट हैंड्स हैंड्स ऑन, ऑन, मैं मैं तुम्हारे साथ सिर्फ शेयर शेयर कर रही हूँ, अंडरस्टैंड करती हूँ। मेरा जो डोमेन डोमेन है, है, मैंने अब तक तक जितना जितना सीखा सीखा है है वो मैं हमेशा हमेशा से से डिजिटल digital ऑडिट पे audit पे काम काम करती हूँ। करती फिल्टर हूँ, कैसे करना है, चीजों चीजों को को कैसे कैसे समझना समझना है, है, एमआईएस एमआईएस कैसे कैसे बनाना बनाना है, है, डैशबोर्ड डैशबोर्ड कैसे कैसे करना करना है। है, अगर अगर मैं मैं इंस्टेंट ट्वेंटी का काम कर कर रही रही हूँ हूँ तो तो रिवर्स जर्नल कैसे यूज करनी है। हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग रिवर्स जर्नल? एक एक, आध जन, हाँ हाँ, बेचर बारिश तो करे छे बद्दू 100% implementation. Now that's that's good. good. See, We we feel feel good good also, at at the the same same time time. I feel bad also कि इतने सालों से बेचारा मेहनत कर रहा है टैली, अभी भी वो पेनिट्रेट नहीं हो पाया of the All the features. features, फीचर्स आर सो ब्यूटीफुल, मतलब मतलब अगर हम उसको यूज करना चालू कर दे तो हमारी लाइफ टाइप आप समझ जाए। इंटीग्रेटेड बैंकिंग आ गया गया है, है, भारत भारत कनेक्ट कनेक्ट प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म चालू चालू हो हो गया गया है। है, सो तो भारत भारत कनेक्ट कनेक्ट आईडी आईडी फ्लाइट्स फ्लाइट्स देखनी देखनी है है, तो तो वो वो दो दो चार चार ऐसी सी चीजें हैं जो जहां मेरे पास भी वीडियो है मैं वो रन करूंगी, और जहां जहाँ मैं खुद बता सकती हूँ वहां मैं खुद कुछ आपको आपको एक्सप्लेन explain करूंगी। that दैट्स जस्ट बैकग्राउंड मैंने क्लियर किया। किया। अच्छा, अच्छा, ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन सब लोग यूज कर रहे हैं। ऑटो ऑटो बैंक बैंक रिकंसिलिएशन मतलब एक्सेल सीधा सीधा आएगा आएगा टैली टैली के के अंदर अंदर, और और उसमें से उसमें से अगर अगर ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन मैच मैच होगी होगी तो तो ओके हो जाएगा, नहीं है तो तो आप आप ट्रांजैक्शन की एंट्री कर कर सकते हैं। द द बेस्ट बेस्ट पार्ट पार्ट फ्रॉम फ्रॉम द न्यू वर्जन वर्जन टैली टैली 6.0 6.0 वाज was दैट कि ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन में भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा मैचिंग कॉन्सेप्ट दे दिया सुमित के जगह कि के भाई बल्क में जब इंपोर्ट करते हो तो तो आप आप जैसे इंपोर्ट हो गया स्टेटमेंट, उसके बाद उसके बाद आप कंट्रोल फाइंड कर कर सकते हो वो स्क्रीन के ऊपर, और आपने एक एक डाल डाल दिया दिया कि कि मिस्टर मिस्टर एक्स एक्स से से आया आया है है या या मिस्टर मिस्टर वाई वाई से से आया आया है या या नरेशन नरेशन कंटेनिंग कंटेनिंग बैंक चार्जेस चार्जेस लिख लिख दिया। दिया। तो तो एक एक साथ साथ में स्क्रीन पे जैसे समझो समझो 20 बीस 25 पच्चीस अपने अपने को को दिख दिख रहे रही है हैं ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस, और और वो वो 20 बीस 25 पच्चीस ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन इन इन अ अ वन वन गो गो यू यू कैन कैन पोस्ट पोस्ट टू द द टैली। टैली, तो सो उतना उतना ऑटोमेशन ऑटोमेशन वहां वहां पे भी आ पे गया है। नेक्स्ट Next, in the 2 months' time, they will be coming with with doc doc AI. AI Means means any any PDF PDF document, document uh, invoice will will be coming to your your system. system, It it will will read it it and and it it will show show you you the the transactions, which you can just, depend depending on your account account head, post, post okay, and and then then save save it. it. फायदा फायदा क्या क्या होगा होगा डॉक डॉक एआई एआई का का कि कि समझो समझो मैं मैं सेल सेल करती हूँ, सबका सबका भी भी दिमाग दिमाग में ना में ना टैली टैली दिमाग दिमाग में में स्क्रीन स्क्रीन ला ला रहा रहे है, हो, उधर उधर नहीं क्यों ला ला रहा रहा हूँ। हूँ। आई आई एम एम आस्किंग आस्किंग यू यू टू टू विजुअलाइज विजुअलाइज टेली टेली व्हेन व्हेन यू यू योरसेल्फ योरसेल्फ इज इज वर्किंग। वर्किंग, क्योंकि क्योंकि हम हम जब जब वो वो देखना देखना चालू चालू करते करते हैं हैं तो सब तो कुछ कुछ भूल भूल जाते जाए। हैं। मैं अभी जैसे बात कर रही हूँ ना तो आपके दिमाग में टैली टैली डाल डाल रही रही हूँ हूँ कि कि भाई भाई जब जब टैली टैली में में सेल्स सेल्स मैं मैं करूंगी करूंगी तो तो मैं मैं आउटपुट आउटपुट सेल्स सेल्स लूंगी, लूंगी, मतलब मतलब आउटपुट आउटपुट जीएसटी जीएसटी लूंगी। लिखूंगी। और और जब जब मैं मैं एज एज अ अ परचेजर परचेजर वो वो पीडीएफ पीडीएफ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट मेरे मेरे पास पास आएगा आएगा तो तो मैंने तो मैंने तो कहा कहा था था इनपुट इनपुट सीजीएसटी सीजीएसटी आईजीएसटी आईजीएसटी बनाया बनाया होगा, होगा, एम एम आई आई करेक्ट? करेक्ट? आर आर वी वी ऑन ऑन द द सेम सेम पेज? पेज? तो तो हमें हमें खाली खाली वो वो जब जब इनवॉइस इनवॉइस आएगा आएगा क्योंकि क्योंकि वो वो टैली टैली से से सपोज सपोज प्रिंट प्रिंट किया किया हुआ हुआ है है या या किसी किसी तरह तरह का का पीडीएफ रहेगा। दे दे आर आर वर्किंग वर्किंग ऑन ऑन 10 10 डिफरेंट या या 15 15 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स टाइप्स ऑफ ऑफ, पीडीएफ्स, क्योंकि क्योंकि काफी काफी सारे सारे लोग लोग का ना लोगों लोगों के के साथ खुद का साथ प्री स्टेशनरी में भी आता है। फायदा फायदा उन लोगों को होगा जिनका जिनका एटलीस्ट एटलीस्ट 10 10 से से ज्यादा ज्यादा आइटम्स आइटम्स रहते हैं रहते ना, हैं ना, उनको उनको तो तो क्रांति हो क्रांति हो जाएगी, जाएगी, क्योंकि क्योंकि वो वो सीधा 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 अगर अगर फर्स्ट फर्स्ट टाइम टाइम मुझे मुझे टैगिंग टैगिंग करना करना पड़ेगा, पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि क्या क्या होगा होगा आउटवर्ड आउटवर्ड में में आप आप लिखते लिखते होगे होगे कॉटन कॉटन फैब्रिक्स फैब्रिक्स और और वो वो खाली खाली साया शायद फैब्रिक्स फैब्रिक्स ही लिख लिख रहा रहा होगा। होगा। तो तो एआई एआई के के थ्रू थ्रू क्या क्या होगा होगा कि कि फर्स्ट फर्स्ट टाइम टाइम आपने आपने अगर अगर कॉटन कॉटन फैब्रिक्स फैब्रिक्स को को फैब्रिक्स फैब्रिक्स कहा का है है तो तो टैली टैली नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम टाइम कॉटन कॉटन फैब्रिक्स फैब्रिक्स वाला वाला भी भी को फैब्रिक फैब्रिक ही ही दिखाएगा दिखाएगा आपको आपको स्क्रीन स्क्रीन के के ऊपर। ऊपर। नाउ नाउ इट्स इट्स अप अप टू टू यूजर यूजर टू टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड कि कि अगर अगर मैं मैं खुद खुद को को भी भी सामने सामने वाला वाले जो जो लिख लिख के के भेज रहा भेजना है है वही वही मुझे मुझे मेरा मेरा आइटम आइटम का का नाम नाम करना करना है, है, तो तो इट्स इट्स एडवाइजेबल। एडवाइजेबल। So सो then देन later later on on you you will
will not struggle with the item name. So that is the way we have to now look at the data entry or transactions. अगर हम किसी कॉर्पोरेट के वहाँ रिटेनरशिप भी कर रहे हैं तो उनके स्टाफ को भी ये ट्रेनिंग हम दे सकते हैं कि भैया ये सब चीजें होने वाली है, आ रही है मेरे पास, बिकॉज आई एम दैट दिस थिंग, मैं देखो यार चलेगा तो आई विल डेमो यू इन द लास्ट 10 minutes, रिमाइंड मी। तो ये आपके लिए होमवर्क मैंने दे दिया है कि आपको वो दिखाना है पीडीएफ कन्वर्टर कैसे दिखता है। चलिए अभी और कितना बोलना है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही घंटों बोल सकती हूँ। देखो मैंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिमार्क्स भी एआई से बनवाए थे और सच्ची में इट्स अ वर्थ, दे आर राइटिंग अपने लिए तो अच्छा ही लिख रहे हैं।
नथिंग हाइडिंग। कौन सा रॉकेट साइंस है, एआई है, चैट जीपीटी है, सबको मालूम है, बट वो जो देगा उसके ऊपर आपका खुद का वैल्यूएशन भी जरूरी है। मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि वो कुछ भी तो नहीं बोल रहा है। दैट इज ऑल्सो वन लर्निंग वी हैव टू डू। बोला कि नहीं? हाँ। So, 3 पॉइंट तो देखो, एक मुझे बहुत अच्छा लगा, कैलाश सर ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में सेम थिंग उन्होंने बोला था, आर बी यूजिंग टैली प्राइम, दैट्स व्हाट ही इज। तो मुझे इतना अच्छा लगा, जो मैं बोलने वाली थी वो उन्होंने बोला कि रेजोनेशन होता है कि हाँ, ही एंड आई ऑन अ सेम पेज, यू नो। So reduce staff dependency, increase audit control and improve compliance accuracy and most importantly increase practice profitability। मैं हमेशा चाहती हूँ कि हम जब भी काम करते हैं तो क्या हम वैल्यू एडिशन क्लाइंट को दे रहे हैं, क्या उन्हें अच्छा लग रहा है कि हमारे होने से उनको फायदा हो रहा है। ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। ओके, कि हम जब भी उनके साथ डील करेंगे उनको वैल्यू एडिशन करके देंगे। तो इतनी सारी मैंने चीजें जमा की थी आज के लिए। ओके, सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए टैली भारत में रन करना चाहूंगी क्योंकि हर एक क्रांति है। अभी इसमें आवाज आएगी कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। यहाँ का आवाज पकड़ेगा बेटा? ठीक है ना, मैं वैसे बता सकती हूँ इसमें आवाज नहीं भी रहेगा तो है कि नहीं मुझे नहीं पता है। इज देयर एनी गेस? नहीं है तो मुझे ही बोलना है। ओके, जाओ दे, उधर से हटा दो, मैं बोलूंगी। सुनो ना, ये उसका लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी फॉर द कंट्री, कनेक्टेड प्लेटफॉर्म, सिंप्लीफाइंग बिजनेस, एंश्योरिंग कंप्लायंस। मैंने ना कल ट्राई भी किया था भारत आईडी मेरे, क्योंकि सबको भारत आईडी बनाना पड़ेगा। जैसे एमएसएमई का है वैसे आपको भारत आईडी खुद का बनाना पड़ेगा। भारत कनेक्ट के प्लेटफॉर्म पे अपने को जाना पड़ेगा। जैसे कि ये देखो, केसीएस प्राइवेट लिमिटेड में भारत कनेक्ट सेंड इनवॉइसेस, सो ही विल सेंड द इनवॉइस जो आपने केस ऑलरेडी बुक किया है, वो जा रहा है, वो शेयर होगा इनवॉइस। जैसे वहां आपको भी दिखेगा, नोटिफिकेशन आएगा, नाउ इट इज ऑटो क्रिएट परचेज एंट्री विद प्री फिल्ड डेटा, वो आपको स्क्रीन दिखाई देगी कि ऐसा वो दिख रहा है। देन यू अंडरस्टैंड कि इट इज ओके, देन टीडीएस डिडक्शन वो आपको करना है, और उसके बाद आपको सेव करना है। पेमेंट कंफर्मेशन भी आप वहीं से पेमेंट की एंट्री राउट कर सकते हैं। उसके बाद उसको चली जाएगी डायरेक्टली। So two systems are talking to each other. And while Bharat Connect is not only with Tally, with another systems also it will work. वहाँ पे भारत आईडी होना जरूरी है, because भारत आईडी प्लेटफॉर्म कनेक्ट is for all the national platform, integrated platform. So it's not restricted to Tally. That myth नहीं रहना चाहिए लोगों के माइंड में। Okay, so we had that. नॉट एज सच, बट जो से जितना भी आप एक्सेल में करोगे एक्सपोर्ट डेटा, और मैं आज थोड़ा सा टेम्पलेट का क्लिप्स भी दे दूंगी कि हम टेम्पलेट बनाना सीख लिया ना तो अपना लाइफ आसान हो गया। वी डोंट नीड टू गो टू एनी अदर सॉफ्टवेयर। बहुत छोटे छोटे काम तो हम हमारे एक्सेल टेम्पलेट से ही कर सकते हैं। टीडीएफ की भी जरूरत है, टीडीएफ की जरूरत है। पीडीएफ में अगर बैंक स्टेटमेंट है तो वो भी कर सकते हैं, वो सुविधा जिंदाबाद है आज की तारीख में। पता नहीं, देखो क्या होता है, तेरा 2 3 पहले एक्सेल टू टैली ना एक वेबसाइट होती थी, समझ लो। हम लोग गूगल पे जाके सर्च करते थे भाई एक्सेल टू टैली कन्वर्टर है कि नहीं है। 10 12 साल उन्होंने कमा लिया, फिर टैली ने उसको टेक ओवर कर लिया। पीडीएफ भी चल रहा था, आज वो व्यापार चल रहा है, सुविधा हैज बीन टेकन ओवर बाय व्यापार। सो एवरीवन वांट्स के मेरा प्रोडक्ट चलने के लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो लेना ही पड़ेगा। सो नो सूनर और लेटर इट विल कम, इट इज वर्किंग ऑन इट, यू नो वीडियो। मेरा तो खुद का चैलेंज क्या होता है, सी बिलीव मी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके साथ ये होता होगा कि आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर ही रहे हैं, यूपीआई पेमेंट भी होता है, जीपे भी होता है, और सो मेनी पीपल यूज क्रेडिट कार्ड फॉर द पर्सनल बैंकिंग आल्सो। उसका भी अकाउंटिंग तो हमें ही करना पड़ेगा, हमारे खुद चोपड़े हमें लिखने ही पड़ेंगे। देयर इज नो नथिंग दे वी विल नॉट डू। एंड आई यूज से 5 to 6 क्रेडिट कार्ड्स। फॉर मी इट्स अ चैलेंज। अगर मैं स्कूल के पास भी जाऊं तो पीडीएफ का क्रेडिट कार्ड का कन्वर्टर अभी तक नहीं आया है। So then we go to बैंक आप एक्सेल में नहीं देते हैं, वो सीएसवी भी चलेगा ना, सीएसवी या एक्सेल दोनों को खींच लेगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो इसीलिए तो मैंने को इंस्टीट्यूट ने क्या किया, टैली के साथ टाइप किया, टूल के साथ भी टाइप किया, 20,000 का प्रोडक्ट 10,000 में दे रहा है, और कभी अपन जाएंगे तो और 1,000 डिस्काउंट मिलेगा। तो 9,000 रुपए में अगर तुमको पूरा साल भर बिना रिस्ट्रिक्शंस 5 यूजर के साथ कन्वर्टर मिल रहा है। और एआई, टैली का एआई में क्या हुआ देखो, मैं बता रही हूँ। ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन में हमने क्या बोला, बल्क एंट्री
नरेशन कंट्रोल फाइंड करके डाल सकते हो। वो ये मंथ का हो गया। सेकंड मंथ में अगेन आई टू डू द एक्सरसाइज, कंट्रोल फाइंड करके मुझे तो वो डालना ही है ना नरेशन। जबकि सुविध का, मैं आई एम नॉट रिकमेंडिंग सुविध, बट सुविध हमारा पीएमपी ने भी किया ही है, और यहाँ जो यूजर्स है उसको बेनिफिट किससे हो सकता है, मेरा फोकस उसके ऊपर है। तो द फोकस इज दैट वहाँ एआई का रूल्स है, इट इज अ एआई टूल, अंडरस्टैंड इट, दे आर एआई टूल्स। तो एआई टूल क्या करेगा, लास्ट टाइम तुमने वंदना जोड़िया लिखा था तो करंट कैपिटल में डाला था या पार्टनर्स रेम्युनरेशन में डाला था, तो वो सजेस्टेड लेजर आपको देगा, एंड दैट सजेस्टेड लेजर वो एक हिसाब पे 1000 एंट्री भी जाती है फिर तो। इट्स हाउ यू यूज द टेक्नोलॉजी। तो इंटीग्रेट करो टैली के साथ हर चीज को, और टैली का एक्सेल का टेम्पलेट में मैं आपको बताऊंगी। मेरा एक क्लाइंट है वो बीसी वापरता है, मैंने उसको टैली दिया भी था, बट समहाउ वी कांट यू नो जेल, हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका ना रिटेल काउंट है, आउटलेट है, और नवरात्रि के टाइम पे इतना रश रहता है, बोला मैडम इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि हम लोग बिल बना पाए, मतलब जस्ट क्यूआर कोड ये वो होता है। तो फिर हमने बोला नो स्ट्रेस, एक्सेल से करेंगे, क्यूआर कोड से डेटा चला जाता है वो एक्सेल फाइल में, फिर वहां से हम उस एक्सेल के ऊपर काम करके डाल दिया था। तो टैबलेट्स बनाना, तो आज का मेरा टारगेट ये था, मैं आपको ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन बता दूं जो इनबिल्ट है टैली में। फिर गो टू फंक्शन, हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग गो टू फंक्शन व्हाइल डूइंग द ऑडिट? गो टू फंक्शन इज ऑल्ट जी, आप कहीं पे भी रह के टैली के अंदर घूम सकते हो। एक रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी फिल्टर मार के एक रिपोर्ट खोल दी, मैं इन्वेंटरी में जाती हूँ तो ट्रांजैक्शंस ईयर्स, इनवर्ड ईयर्स, आउटवर्ड ईयर्स, ये सब स्क्रीन पे प्लॉट करता हूँ, ऑल्ट F1 करके पूरा डिटेल फॉरवर्ड करता हूँ। सडनली मुझे कुछ याद आता है या मैं ड्रिल डाउन करके अंदर वो ट्रांजैक्शन में जाता हूँ, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप ऑल्ट जी करके जो भी देखना है देख के वापस वही जगह पे लैंड हो सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल फीचर। सो मैं चाहती हूँ ऑल्ट जी कितने लोग यूज करते हैं, हाथ ऊपर करें प्लीज। हाँ, 6-7 लोग करते हैं, चलो फेरो सपोर्ट। मैं हमेशा ये डायलॉग बोलती रहूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ नया लोग सीखते हैं तो। इट्स अ यूनिवर्सल, अवर हमारा अपना इंडियन गवर्नमेंट हैज फ्लोटेड में है, जो एनसीपीआई बोलते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट गेटवे चेंज, बट दे हैव अ हाई एंड टेक्नोलॉजी, तो वो एन्क्रिप्टेड वे में इंटरनली ट्रांसफर करेंगे डेटा। तो जो देयर आर आईडी, आई शो यू, मैं जो कल आरएनडी किया था ना, आई एम टेलिंग यू बिकॉज़ मैंने खुद ने रिसर्च किया कि मैं मेरा बीबीडीएन होगा एट yahoo.co.in, मेरा मल्टी यूजर लाइसेंस है विद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेरा बीएपी इन्फोटेक 11 है, वो मेरा सिल्वर लाइसेंस है फॉर द सेल्स एंड ऑल दैट। तो अगर आप ऑथराइज नहीं है तो आपको बीबीडी आईडी भी आपको नहीं दिखेगा, यू शुड बी ऑथराइज्ड टू गेट। सो देयर आर लेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज आर अवेलेबल, उतना स्ट्रेस नहीं है, और हर टाइम जब भी ट्रांजैक्शन होगी बिना ओटीपी नहीं होगी। क्लाउड पे टैली में डायरेक्ट चला जाएगा, ऐसा नहीं है, आप मुझसे लिखा के लेना पड़ेगा कि आई एम यूजिंग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। और अभी देखो तो काफी सारी कंपनीज रहती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनका अलग सॉफ्टवेयर रहता है, तो डेटा का एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर होता रहता है, पेरोल में भी अलग सॉफ्टवेयर रहता है, जब आपको वो इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। सो एज अ ऑडिटर वी हैव टू मेंशन दैट वी आर यूजिंग दिस 5 सॉफ्टवेयर एंड द डेटा सिक्रेसी हैज बीन मेंटेन्ड, क्योंकि देखो अगर आप सुविधा पे भी डालते हो ना, तो यूजर आईडी पासवर्ड के बिना तो डाटा दिखेगा ही नहीं ना। बड़ी कंपनी है, उसका डाटा मैंने यहाँ पे डाला, तो हम दैट कंपनी हाउ टू टेक डेटा। दैट कंपनी ऐसा नहीं है, ये आपकी ही राइट है, वो आपके पास ही है, किसी और के पास नहीं है, वो डेटा आपके क्लाउड में है। देखो अभी पूरी दुनिया में ना, ये तो अभी रिकॉर्डिंग चालू है, तो ब्लैक तो चालू ही है ना, अब चाहो नहीं चाहो गूगल हमारे अंदर घुसा पड़ा है, मैं किधर बैठा हूँ उसका लोकेशन ट्रैक हो रहा है, कुछ आप स्टॉप नहीं कर सकते। वल्नरेबिलिटी ये है कि उसका मिसयूज नहीं हो रहा है ना, उसके ऊपर अपने को ट्रैक रखना है। वी हैव टू बी विजिलेंट, चाहो नहीं चाहो हम अंडर स्कैनर तो है ना। आपका जो सोचिए घर वाली अमेज़न वो क्या है, एलेक्सा सुन रही है, जब वो ऑफ भी रहती है ना तो भी डायलॉग सुन रही है आपका, उसके अंदर बनाया गया है सॉफ्टवेयर, दे आर watching, listening to what you are doing, but at the end of the day you have to be vigilant कि मैं वैसे नहीं करूँ कुछ भी जो मुझे नहीं देना है पब्लिक को। और गया तो भी बहुत, मैं तो ऐसा इतना चंगा सोचता नहीं हूँ,
कि फिर कुछ आ गया, क्योंकि इतना सोचेंगे तो लाइफ नहीं चल सकते भाई। और फिर तो हम तो कर्मा फिलोसफी वाले हैं ना, जो किया यही से दिया, जो होने वाला है होते रहने वाला है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप घर खुला करके बैठ जाओ, वहां पे गेट लगाना है, सिक्योरिटी कंट्रोल्स डालने हैं, दैट्स व्हाट पी एफ है बेटा। लॉक डालना है। फिर देखो, चोर पुलिस सब रहने वाले ही है ना, चोर और पुलिस रहने वाले हैं ना। ये मैं डेमो वाला भी आपको दिखा रही हूँ, उसमें जरा माइक लगा के दिखना बेटा। क्योंकि ना मैं होशियार हूँ, इसमें साउंड है ही नहीं था मेरे पास, मैंने वहां वो लगाया नहीं स्पीकर। ठीक है, और एक जस्ट इधर मैं लैपटॉप पे कॉपी कर दूंगा। So what I was trying to do is that laptop had its own mic, और मैं अभी रिमोट पे काम कर रही थी, रिमोट जो मेरा सर्वर है उसको मैंने रखा ही नहीं है साउंड सिस्टम उसके लिए। It will take 2 minutes, तब तक हम कुछ और देख लेते हैं उसमें। वहाँ पे बजेगा ना यार। नहीं नहीं, ये जो है ना जूम मीटिंग मेरे में भी चालू है, तो मेरा ऑडियो यहाँ पे भी प्ले होगा, बट दिस मशीन शुड हैव ऑडियो। इसमें तो मैंने खुद ने भी बनाया है वीडियो स्मार्ट फाइट पे। मैंने बताया जगह लोग बोले कि मैं दुनिया का ना 8वां अजूबा हूं। पूरी दुनिया को जब ठंड लग रही था मुझे गर्म हो गया। नहीं अच्छा, बोलता मेरे को परेशान मत करो, इतना काम मत करो, मुझसे लैपटॉप दिखा दे तब मैं चाहती हूँ। इधर देखो मैंने कितना टाइम लिया बाद में आपको बिना डाली, कितना टाइम बात किया, अभी तक मैंने टाइम चालू नहीं किया। ओके, मैं ना सबको ऑटो लॉगिंग करके एक फीचर बोलती हूँ, ऑटो लॉगिंग के बाद बंद करना है, आवाज बंद कर रहा है, इसमें भी हवा आ रही है। Can you see on the screen the company? That is called photo logging. तो अगर आप हर दिन जाके एक कंपनी में 5 कंपनी आपको काम करना ही करना है, तो आप उसको ऑटो लॉगिंग करके एक फीचर एनेबल कर सकते हैं। और एक बार हमने पासवर्ड डाला तो दैट विल वर्क फॉर ऑल द कंपनी, मतलब हर कंपनी में वही पासवर्ड है, तो मुझे बार बार नहीं डालना है वो 5 कंपनी खोलने के लिए। आज की तारीख में आप हर बार पासवर्ड यूजर आईडी पासवर्ड डाल के
बोल रहे होंगे। Is it okay? So मैंने ये लॉगिन ऑटो लॉगिन करके रखा है। तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड दिस फीचर? भाई साहब ने यूज किया है, वेरी नाइस। बाकी लोगों को बताना पड़ेगा हमको कहाँ होगा वो। सेटिंग्स पे जाना है। ये क्या था? मेरा स्टार्ट ऑफ द टैली था, तो ऐसे याद रखना है। F1 सेटिंग्स स्टार्टअप। स्टार्टअप देखो, लोड कंपनी ऑन स्टार्टअप। पहले पुराने जमाने में भी टैली स्टार्ट होता था तो एक कंपनी अपने आप खुल जाती, तो दैट्स अ लोड ऑन स्टार्टअप। एंड देन उसके बाद मैंने डाउन एरो करके नीचे जाके एंटर किया, सो आई कैन सिलेक्ट दिस। So now when you see the screen, what I'm trying to make you understand is that across 6 different folder में भी मेरे क्लाइंट का डेटा है। आज की तारीख में मुझे 3 लोगों का ऑडिट करना है, तो वो तीनों कंपनी मुझे खुल के देखनी है, तो मैं यहाँ जाके तीनों का सेटिंग कर सकता हूँ और हर दिन में ये चेंज कर सकता हूँ। इट्स ऑन मी कि मैं जिस जर्नी की चालू करूँ मेरा काम, तो मुझे कौन सी कंपनी स्टार्टअप में चाहिए। अभी गेटिंग? और जो सबसे नीचे रहती है सिलेक्टेड, वो सबसे टॉप में खुलती है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अगर आपको थोड़ा सा डेमो देखना है तो मैं और एक कंपनी अभी इसमें कौन सी नहीं है, ये अपना डाल देते हैं। तो ये ऊपर वाला मेरा चेंज हो गया, समझा नहीं समझा? और यहाँ पे मुझे वो कौन निकल गया वहां से, हर्ष आ गया। वो हर्ष को मैंने डाल दिया, ऐसे मैंने जैसे डाला। या आप वहां पे पाथ सिलेक्ट करके भी डाल सकते हो, स्पेसिफाइड बात करके भी कोई कंपनी आपको डालनी है तो डाल सकते, क्योंकि हम तो क्लाइंट का क्लाइंट के फोल्डर में डालेंगे, तो वहां से वो सिलेक्ट करके आप यहाँ पे डाल सकते हो। वो जैसे ही मैं डाल स्टार्ट करूंगा वो 4-5 कंपनी नीचे आ जाएंगे, तो जीएसटी के टाइम पे भी वो इजी पड़ता है। फटाफट 5 कंपनी का डेटा देखना है तो एक साथ में आप वहां पे डाल दीजिए, आपको इजी हो जाए। सो यूटिलिटी यूज केस यू हैव टू थिंक विजुअलाइज, थिंक ऑफ ये मेरे को फीचर यूजफुल रहेगा। एंड अदरवाइज तो डे टू डे मुझे काम करना है तो वो मैं सोचते ही रहती हूँ वैसे। अभी मैंने सेव नहीं किया क्योंकि मेरा हिल जाता है। बोलो। The land environment is machine specific or server specific? It is machine everywhere it works. मेरे मशीन में भी खुलता है, दूसरे के मशीन में भी यही खुलता है। तो इट इज स्टार्टअप का सेटअप है, तो कोई भी बंदा खोलेगा उसको यही दिखेगा। Or machine specific? ना मशीन स्पेसिफिक नहीं। फिर ये है, ये जो डैशबोर्ड और लोडिंग कंपनी है ना, वो आप डायरेक्ट करके उसमें कर सकते हो। डैशबोर्ड कितने लोगों को पता है? टैली 4.0 के बाद आया है। देखिए 4.0 तक तो आपको माइग्रेट करना ही पड़ेगा डेटा। डैशबोर्ड के भी 4.0 एंड 7.0 में जो आज हम फीचर देख रहे हैं, लाइक ऑल्ट फाइंड, मतलब ऑल्ट एफ फीचर है, क्योंकि कंट्रोल फाइंड हमने 4.0 में देख लिया था, तो नाउ ऑल्ट एफ वाज टू बी गिवन अक्रॉस द टैली। वो मैं अभी आपको सैंपल भी दिखा देती हूँ। डैशबोर्ड थोड़ा एमआईएस के लिए, आप डायरेक्टर के लिए या मैनेजर के लिए आपको बना के रखना है, आप खुद के लिए भी बना सकते हैं, सीएलओ के लिए, जीएसटी क्लाइंट्स का ट्रांजैक्शंस प्रॉपर है कि नहीं वो सब। और ये सबसे लास्ट वाला है एनेबल ऑटो लॉगिंग, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक लोड होती है कंपनी। और ऑटो लॉगिंग फॉर कंपनी विद द सेम क्रेडेंशियल का मतलब क्या है? एक ऑटो लॉगिंग लोड ऑफ कंपनी स्टार्टअप 5 कंपनी हो गई, अब इसके बाद मेरे पास 40 कंपनी जिसका मैं काम कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मेरा नेचर कैसा है, मैं हर जगह पे बदलना ही लिखती हूँ, पासवर्ड मेरा स्टैंडर्ड रखा है। तो क्या होगा, मैं तुरंत कोई भी कंपनी खोलूंगी जहां पे सेम पासवर्ड है, तो ऑटो लॉगिंग that time I don't need to again re-enter the password. That is the benefit. So ये auto login and auto load, two automated feature मैंने आज आपको बताया। Two are different features. आपकी understanding है? Auto load means companies अपने आप start होगी, मतलब एक साथ में लिस्ट हो जाएगी 6-7 कंपनी। फर्स्ट टाइम आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालना है, 6 कंपनी में अलग यूजर आईडी पासवर्ड है, तो आपको 6 टाइम्स वो एंटर करना पड़ेगा। That's it. बट कंपनी एक साथ हो जाएगी। और ये हो गया एनेबल ऑटो लॉगिन, इसको मैंने सेव कर दिया। और इसके बाद मुझे आपको क्या बताना था, अभी मैंने कुछ बोला ना, समथिंग आई स्पोक। ऑल्ट एफ, कंट्रोल एफ, स्क्रीन स्पेसिफिकेशन, ऑल्ट एफ, ये ना सबसे ऊपर जाता है, बराबर। और जैसे भी कुछ भी मेरे को ढूंढना है, अभी बंदा मैं लोडेड कंपनी में हूँ तो मैं डालूंगा टैली कुछ नहीं,
फिर ऑल टाइम कहाँ से लेके आया 100 ऑफ 102 रिजल्ट्स सो अक्रॉस दिस अभी मैं इसको एप्री करके दूसरे कंपनी में भी जा सकता हूँ तो वहां पे भी अगर कुछ रहेगा तो आ जाएगा कहीं पे भी रहेगा वो लेके हाँ 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 इट इज आई जस्ट वांटेड ये आप लोगों को पता चले फीचर्स तो यूज कर सकते हो वो वहां पे मुझे एक ही जगह पे या पे एक दिमाग में लेके चल रहे हो वही यूज कर सकते हैं यहाँ पे वो अक्रॉस लेके आ रहा है और अक्रॉस हर कंपनी तो बार बार मुझे वो डालना नहीं पड़ रहा है अभी ग्रुप कंपनी में कहाँ से पेमेंट हुआ था वो ध्यान में नहीं आ रहा है उस पार्टी तो ये फीचर तभी काम में आएगा ना कहीं भी पेमेंट जाता है और नरेश में भी लिखा रहेगा तो अपने को फायदा हो जाता है फिर so we have to visualize we have to start working on it you know कि कहाँ कहाँ मैं इसको यूज कर सकती हूँ let's hope कि अभी वो आ गया होगा पता नहीं मेरे को एकदम मुझे प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है मुझे मेरा डेस्कटॉप पे जाने के लिए समझ में नहीं आ रहा है हाँ हाँ अभी समझा ये कहाँ चालू हुआ anyway so I'll just pause it for something Google backup see I'll tell you how it works मैं थोड़ा ऑडियो में भी दे देती हूँ see let's start ये यहाँ से ये कंपनी में गया why is a data exchange backup and restore then backup पे आप क्लिक करोगे schedule backup now you can schedule the backup timings मुझे शाम को 7 बजे 7:30 बजे कोई स्पेसिफिक टाइम पे लेना है तो और कहाँ लेना है यू कैन डिफाइन टैली ड्राइव सी ड्राइव डी ड्राइव कहीं पे लेना है तो ये फायदा है ऐसा नहीं है कि गूगल ड्राइव पे लेना है मैं अपने ही कंप्यूटर में दूसरा एक्सटर्नल ड्राइव में भी ले सकती हूँ और 3 4 5 6 जितनी कंपनी फ्रीक्वेंसी आपको डेली लेना है वीकली लेना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं आज अभी लेना है वो कर सकते हैं आप टाइम स्पेसिफाई कर सकते हैं आएगा आएगा गूगल ड्राइव नहीं now they are giving you drive tally drive sorry my bad tally drive my bad sorry वो tally ने आपको 1 GB दिया है हाँ बाद में एक्स्ट्रा खरीद सकते हो आता झाला नवीन एक बार बैकअप हो गया वो दिखाता है बैकअप कौन सा है क्या है तो ट्रांजैक्शन वो इंक्रीमेंटल बैकअप होता है इंक्रीमेंटल बैकअप ये है एक ट्रांजैक्शन का भी अलग से देते हैं कोई चाहिए या छोटा चाहिए फर्स्ट टाइम तो पूरा डाटा ले रहा है हाँ देखो बैकअप इन प्रोग्रेस दिखा रहा है बैकअप कंप्लीटेड सक्सेसफुली अप टू टैली ड्राइव बैकअप साइज 6.20 MB एंड 11.43 किलोबाइट बट इसका मुझे खुद को लॉजिक समझ नहीं आ रहा है कि जो लास्ट वाला है मैं उसको रिस्टोर करूंगी तो पूरा डेटा आएगा क्या that's I need to also verify because I talk with them seniors कंपनी आया है और पे कर रही है पूरा का डेटा ते बराबर त्याच्यानंतर 2 लाइव डेटा चल रहा है तो आपने कंटिन्यूअस दे के रखा है पूरा ही आएगा You can select incremental first demo. But ideally सब लोग full backup मिलेंगे but what it makes sense और फिर डाउनलोड किया उन्होंने और सब कुछ ना टैली राइट स्क्रीन देखेगा टॉप स्क्रीन देखेगा तो फीचर्स रहते ही है कुछ ना कुछ एक्सटेंड द स्टोरेज अगर आपका
जो मिनिमम दिया है 1 GB अवेलेबल टू ईच यूजर आईडी मतलब टैली नेट टैली को 1 GB दिया है और फिर वो जाके आप उसको एनहेंस कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं. अजून मला माहित नाही मला माहित नाही कोणी खबर नाही. Suppose I take that up again, deeper when it है, I take it again. So in that case, is it clear? नहीं वहां रहेगा जब तक मैं डिलीट नहीं करूंगी. वो देखो ना उसमें दिखा है नीचे है ऊपर है ऐसे 5 6 7 हो जाएंगे. फिर you have to go to that report and then you select last 3-7 दिन के मुझे नहीं चाहिए डिलीट कर दो जगह आज कर. So that's available. स्कूल बैकअप है तो इंटरनेट है तो वो एक से ही आएगा. नहीं उनका प्रश्न ये था कि जैसे ही मैं नया बैकअप लूंगा पुराने पे ओवरराइट करेगा क्या. तो इन्होंने क्या किया है कि आपको चॉइस दी है कि आप कंटिन्यू करते जाइए और जब आपको जो नहीं चाहिए वो डिलीट करना है तो वो स्क्रीन पे आके आप डिलीट कर सकते हो. यहाँ पे देखो 1 2 3 ऐसा वो स्क्रीन दिखेगा वो हिसाब से. दिस ऑल विल शेयर्ड. आप फिर डाल देना ड्राइव पे वो लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं. મને છે ને ડર શું લાગે કે હું એને બંધ કરાવું ને ઝૂમ બંધ ન થઈ જાય. That's my biggest problem when I work with this dual screen. मैं ट्राई कर रही हूँ अगर पॉसिबल होगा तो. ये सब प्रेस वाला So generally you copy the path and then you go for import. import में बैंक स्टेटमेंट अगर ये हाईलाइटेड नहीं है तो आपको लेजर में जाके लेजर को ऑल्टर करके यूज ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन यस करना होता है. इफ यू गो ऑन एनी स्क्रीन ऑफ import and bank statement is not highlighted. Why it is not highlighted? Because you have not enabled auto bank reconciliation. Okay, so that can be one of the reason. And specify path अगर मैं कॉपी करके लाई हूँ कंट्रोल V एंटर and all and suppose हम ये 411 से लेते हैं yes लेते हैं. Just I'm trying to make you understand the process flow. कि वो चल जाए तो मेरा नसीब. टैली चला गया कहाँ चला गया. वो मैं गलती से बंद नहीं कर दिया ना मुझे बड़ी डर लग रहा है. ओह वो जो था वो पाथ डिफाइंड था बैंक का. वो नीचे इतने सारे लिस्ट आ गए ना और हमको जहां से लेना है तो क्लाइंट का जब भी आता है तो क्लाइंट के फोल्डर में रहेगा. तो अपना जब भी एक खाता है तो एक पाथ रहता है तो ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग द पाथ कि मुझे कहां से वो डेटा उठाना है. वो बाहर ही फेंक रहा है. मतलब आप लोगों का किस्मत और मेरा किस्मत चल नहीं रहा है आज तक जाने दो. वो मुझे बताना है कि मैं आई कुड शो यू हाउ इट वर्क्स.
So pathetic. ये चैलेंज रहेगी, हर टाइम वो खुलते रहेगा। आपको जैसे बेनिफिट होता है, हर चीज का प्लस एंड माइनस रहता है कि ऑटो लॉगिन हो रहा है तो वो 5 कंपनियां आ ही रही है, और वो बिकॉज वो एजेंट नहीं मिल रहा है इसलिए मुझे वो एंटर करना पड़ रहा है। अगर एजेंट मिल जाता था तो वो एक साथ में खुल जाता था, तो मेरे को 5 बार एंटर नहीं मारना पड़ता। आई मीन दैट्स, यू नो, देयर इज ऑलवेज प्लस एंड माइनस ऑफ एवरी ट्रांजैक्शंस व्हाट इज हैपनिंग, यू नो। सो मुझे ना वो तुमको बल्क इंपोर्ट वाला एंट्री दिखाना था, समहाउ आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। एक बार और ट्राई कर देखती हूँ, कुछ होगा आपके नसीब में और मेरे नसीब में दिखाने के लिए। यहाँ से आप डायरेक्ट टॉगल भी कर सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कॉपी करके लाना है। आप यहीं से भी डायरेक्ट, जैसे अपन जाते हैं ब्राउजर में, वैसे सिलेक्ट फ्रॉम द ड्राइव करके भी जा सकते हो, नेविगेशन यूज कर सकते हो। मैं क्लास ट्राई कर रही हूँ, कोई फायदा नहीं। मैंने अपलोड नहीं किया, बात ही करना मेरा। अभी वो बाहर फेंकेगा मतलब तेरे को बहुत कुछ तो चैलेंज आती है। How much time I have? 10:45. So रिकेप करो फटाफट, क्या क्या सीख लिया। भारत कनेक्ट B2B आईडी बनाना है, वो मुझे अभी आपको दिखाना है कि मैं रियल लाइफ में कैसे वो आईडी को देखूंगी, बनाते हैं। ऑल टैक्स सीख लिया, ड्राइव, टैली ड्राइव बैकअप आ गया, ऑटो लॉगिन, ऑटो स्टार्टअप पे लोन कंपनीज आपने देख लिया है, और एक्सेल का टेम्पलेट मुझे आपको एक बना के दिखाना है। भारत कनेक्ट का बता देती हूँ कैसे करते हैं। तो चैलेंज है, वो चाहते हैं कि आप स्क्रीन देखो मेरी। हाँ करते हैं, वो भी है, मैंने वीडियो डाला है। डायरेक्टली स्टेटमेंट भी डाउनलोड हो जाएगा, ट्रांजैक्शंस भी अपलोड हो जाएगा, मतलब सीएसपी आपकी कर सकते हो बल्क पेमेंट की। इसमें भी वो सब आ गया है, विद अभी 15 बैंक के साथ है। इंटीग्रेटेड स्टेट बैंक और एक्सिस हो चुका है, एचडीएफसी इज इन पाइपलाइन, बैंक ऑफ बड़ौदा इज गोइंग ऑन, आईसीआईसीआई का साइट के ऊपर जो है टीडीएल वो लेके करोगे तो टीडीएल उसका वैसे। आईसीआईसीआई की साइट पे जाके आप टीडीएल मिलेगा। वैसे जो मैंने ऑटो लॉगिन बोला वो अभी तक आप लोगों को इतना समझ में आया कि वो जब भी स्टार्ट होता है वो अपने आप हो जाता है ना। कंपनी में जाके अगर आप कोई दूसरी कंपनी भी सिलेक्ट करोगे और उसमें अगर आपका पासवर्ड सेम रहेगा तो फिर ओपन होगा मिलेगा। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो कि आप जितनी बार नई नई कंपनीज खोलने जाओगे ना, किसी और का काम मुझे करना है फॉर एग्जाम्पल, और उसमें मेरा पासवर्ड सेम होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन, तो मुझे डालना नहीं पड़े। ऑटो लॉगिन इज एक्चुअली मींस दिस। टेम्पलेट कितने लोगों ने बनाए हैं एक्सेल में टेम्पलेट खुद?
एक जन बनाया विषय टेम्पलेट हमें बनाया उस टेम्पलेट अच्छा टेम्पलेट कैसे कैसे कब कब यूज कर रहे हो आइदर 26 एएस का डेटा मुझे डायरेक्ट एंट्री करनी है इवन बैंक में भी आप टेम्पलेट बना सकते हो बट मैं एडवाइस नहीं करती वो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग उधर भी मुझे लेजर डालना ही है तो मैं टैली में इंपोर्ट करके लेजर डालूं वो बेटर रहता है तो आई विल नॉट रेकमेंड कि टेम्पलेट क्या है सॉरी एक्सेल का टेम्पलेट ना पहले क्या था हम खुद बना सकते हैं अभी मींस मेरे क्लाइंट सब डेटा एक्सेल में रखता है और मुझे टैली में इंक्लूड करना है गिव हिम द बैलेंस शीट वो आ जाता है नेटवर्क सर्टिफिकेट चाहिए उसका टैली में डेटा ही नहीं है वो एक्सेल में ही पूरा सब कुछ अपना ट्रैक कर रहा है तो वो बैंक स्टेटमेंट भेज देगा या उसका सेल्स रजिस्टर परचेस रजिस्टर भी होगा और हमारा जैसे जो क्लाइंट है जिसका इन्वेंट जैसे कंपोजिशन बिल्डर है वहां तो मैं जीएसटीआर पूरे को डाउनलोड करके एंट्री करा लेती हूँ ताकि जरूरत ही नहीं है मेरे को इन्वेंटरी मेंटेन ही नहीं करना है अगर खाली अकाउंटिंग करना है तो हम जीएसटीआर पूरे को भी सीधा मैप करके कर ले सकते हैं मैपिंग इज द कॉन्सेप्ट आप अपने हिसाब से जितना जो लेवल पे लेके जाना है कर सकते हैं आपका जो सवाल है ना कनेक्टेड कंप्लायंस कनेक्टेड बैंकिंग कम्युनिकेशन कनेक्टेड पेमेंट एंड क्लाउड एक्सेस सब ये अभी 20 के बाद आ गया है टाइम के बाद अब इसमें दोनों को रियल टाइम इनसाइट चाहिए अकाउंटेंट को इंट्यूटिव वर्क फ्लो चाहिए और चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑर्गेनाइज्ड ऑडिट फ्रेंडली डेटा चाहिए तो व्हाई आर वी हियर टुडे वी ऑलरेडी वी कंसर्न हाउ ये सब हमने बनाया था ये सब भी होगा instant discovery with smart find वो जो alt f is an instant discovery alt f that is smart find find from anywhere quickly find any user entered information within masters and transactions similarity match find what are you looking for even when you don't remember exactly what you entered find across the companies view result from all loaded companies at once मतलब वो F3 करके आपको या तो नीचे भी दिखाता है दूसरी कंपनी में रहेगा प्रोडक्ट वॉक थ्रू तो वही सेम फीचर्स 3 कंपनी खोल के रखी थी इसके साथ में और टैप करके जब तक साउथ नहीं तो समझता है क्या क्या ढूंढ रहे हैं तो ममता जीपे करके उन्होंने डाला फाइट किया तो वो देखो नीचे ममता एंटरप्राइज मिल गया उसको नेशनल एंटरप्राइज तो व्हाट आई आल्सो लर्न टुडे व्हाइल शोकेसिंग यू कि अगर वो 3 कंपनी खुली है तो किस कंपनी में वो डेटा है वो भी वो लेके आता है कंपनी लेफ्ट साइड में उसने कंपनी दिखाया ना सो इट इज फिल्टरिंग ऑन कंपनी मैंने તમને જ્યારે સ્ટાર્ટિંગ ઓલ ટેપ બતાવ્યું મેં સિર્ફ ઓલ ટેપ થી કરીને આ ફીચર્સ ત્યાં પણ ચાલશે બટ while watching the video I realized it is वो आप कंपनी को सर्च करके लेके आ रहे हैं वो कंपनी में वो है इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड में उसने कंपनी दिया पर्टिकुलर्स दिया और मैचेस फॉर्म और मास्टर्स भी लेके आ रहा है मतलब ट्रांजैक्शंस में भी कहीं पे वो है सनराइज तो वो ढूंढ के आपको जाके देना I think all of you must migrate to self-control. That's my humble request.
लेकिन टीडीएल जिनका है वो टीडीएल वेंडर के साथ बात करके फिर माइग्रेट करेगा, that's a option. क्योंकि उनकी टीडीएल अगर 7.0 के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है तो आपका डेटा एनीवाई डूब सकता है। तो ऑलवेज स्टॉप स्पीक जिन मतलब मैं किसी कंपनी में ऑडिटर रहती हूँ तो वहां मुझे पहले चेक करना पड़ता है तो उनका जो टीडीएल वेंडर है वेंडर ही हैज अपडेटेड दैट पर्टिकुलर टीडीएल इंटीग्रेटेड विद दी 7.0 फीचर, क्योंकि एक मास्टर स्प्लिट बढ़ता है, क्योंकि पहले 5 डिजिट की कंपनी थी, आफ्टर 2.1 जब 3.1 आया ना तो इट इज नाउ 6 डिजिट कंपनी। दैट वन नीड टू बी अंडरस्टैंड। तो इतना सारा आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। दिस पीपीटी आई बी मेलिंग टू नवनाथ जेबी नगर स्टूडेंट्स, नॉट सिमिलर, ग्रेटर देन, सब कुछ पॉइंट्स रिपीट। पहले क्या era multiple keywords won't bother me anymore. Prime banking, pick your payments, pay, track, notify and reconcile all handled for you within time. तो ये देखा ना टोटल एक्सेप्टेबल ये तीन बैंक काफी इंटीग्रेट होता है। Direct payments through integrated partner bank APIs, real-time status update, reconcile one click, instant vendor confirmation with bill details. Yeah. मतलब पहले मैं पेमेंट का एंट्री करूंगी ना, फिर एक सीएसपी जनरेट होगी, फिर मुझे उसको ऑथराइज कर। पहले आप आउटस्टैंडिंग में जाओगे, किसी पार्टी को पेमेंट करना है, जैसे कि अमित ट्रेडर्स को ये बिल का पेमेंट करना है, तो 2 बिल सिलेक्ट किए, फिर सेटल बिल, ये ऑटो सेटल बिल भी साइड में है, तो आप जैसे जाके आउटस्टैंडिंग में जाके सिलेक्ट करते हैं ना, तो आपको पंच नहीं करना पड़ता आगे रेफरेंस ये बिल। आपको देखो एक साथ में जैसे ये यस करेगा, दोनों ट्रांजैक्शन नीचे आ गए 8-9, तो आप 5 बिल का भी एक साथ में जाके ऑल्ट भी सेटलमेंट ऑटो बिल सेटलमेंट बोलते हैं फीचर को। वो पेमेंट का एंट्री उन्होंने कर दिया, फिर वो एक्सचेंज में जाएंगे, एक्सचेंज में सेंड पेमेंट्स में जाएंगे। सेंड पेमेंट में ये दिखेगा कि ये आपने अभी बनाया है, 2 अकाउंट है, एक दिल्ली एंटरप्राइज का है और एक ट्रेडर्स का है। पेंडिंग गो टू द बैंकिंग साइट्स, फिर आप जो सिलेक्ट किया जहां पे बाहर है दैट इज सिलेक्टेड, देन आप चाहोगे पहले बैलेंस चेक कर लूं तो गेट बैलेंस, तो लाइव बैलेंस आपको मिलती है। ये वो 3 मिनट की के लिए हाँ मतलब काफी सारी लोगों की है, मतलब मेरी इंडसइंड बैंक की भी है इंटीग्रेटेड, लाइव सब बैलेंस लेके आते हैं। तो कुछ फिर अलग सेटअप करना पड़ता है थोड़ा सा जेपीआई वगैरह, थोड़ा दैट देयर इन दैट इट इज टैली, और टैली सपोर्ट विल हेल्प यू गाइड यू कि कैसे करना है। मोटा मोटा तो आप खुद ही कर लो, जैसे आप चाहोगे थोड़ा अंदर, once you get inside the system it will prompt you क्या इसके आगे मुझे ये चाहिए, इसके आगे मुझे ये चाहिए, ये हो गया आपका प्रोसेस। तो वो सक्सेसफुल की लिस्ट में फॉल कर रहे हैं। एक्सचेंज फॉर जीएसटी रिटर्न्स भी एक्सचेंज है, फॉर भारत कनेक्ट भी एक्सचेंज में ही उन्होंने वो previous people you were processing payments. यस So the generate file and it will go on. उन्होंने ओटीपी ले लिया और वहां से पेमेंट डिस्पर्स भी हो गया। यू डोंट नीड टू लॉग इन टू आईडी। पहले क्या था डीबीएस में हम लोग यहाँ से पेमेंट अपलोड करते हैं, फिर किसी ओटीपी के थ्रू या अपनी मोबाइल के ऐप में जाके आया है पेमेंट उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता था। इवन इन एचडीएफसी आल्सो आप वर्क अपलोड करोगे फिर वो लोग वहां आपको लॉगिन तो करना ही पड़ेगा नेट बैंकिंग में, और वहां जाके उसको ऑथराइज करना पड़ेगा। अभी इंटीग्रेटेड सही से डायरेक्ट चला भी जाएगा सब कुछ। बैंकिंग से भी जाने की जरूरत नहीं है। ओटीपी से ऑथेंटिकेट हो जाएगा ट्रांजैक्शन। प्रोसेस द सैलरी आल्सो। जैसे आप इनकम टैक्स में पेमेंट करते हैं चलान का, हाँ ऑनलाइन पे जाते हैं हाँ तो वहां लॉगिन करते हैं, वहां लॉगिन करना नहीं जरूरत नहीं, दैट इज फॉर इंटीग्रेटेड बैंकिंग।
और भारत कनेक्ट देखोगे तो आपको एक्चुअली बहुत अच्छा है, बढ़िया है। तो जल्दी से जल्दी अगर क्लाइंट को बोलो भारत आईडी पे चले जा तो क्लाइंट ऑटोमेटिक अकाउंटिंग एंट्री हो जाएगी। हाँ, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग एंट्री। हाँ, ऑटो लॉगिन में एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड और यूजर पासवर्ड अलग अलग रहेगा तो फिर ऑटो लॉगिन सब कंपनी का एक साथ नहीं ऐसा नहीं है। but that's what I when you asked me I was also wondering, क्योंकि मेरा सब स्टाफ को खुल जाएगा तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, तो it should be you know that particular company specific, वो user specific होना चाहिए, मतलब मेरा machine में खुलना चाहिए। So I have to see, क्योंकि मैं वहां से बाहर लॉगिन करके दूसरे यूजर से जा सकती हूँ, बट जब भी मैंने देखा मेरे सर्वर पे भी यही चल रहा है और मेरे इसमें भी यही चल रहा है, मतलब इट इज अक्रॉस यूजर्स वो पासवर्ड से जा रहा है। नहीं सी ऑटो लोड कंपनी का नो कर दो और ऑटो लॉगिन ऑन रख दो। अब लॉजिक नहीं समझे, मैं मेरी कंपनी में मेरा ही स्टाफ है तो इसलिए मुझे चल रहा है कि लोड हो गया कंपनी विद माय पासवर्ड, बट आपको ऑटो लॉगिन फीचर्स यूज करना है। ऑटो लॉगिन में तो जो कंपनी में खोलूंगी वो मेरे पासवर्ड से पहली कंपनी खोली, फिर दूसरी कंपनी में मेरे कंप्यूटर में मेरे पासवर्ड से मुझे पासवर्ड डालना नहीं पड़ेगा। यूजर थर्ड यूजर को उधर डालना ही नहीं है ना मेरे टॉप 10। ऑटो लॉगिन इज अ सेपरेट and auto load is separate. Two things are separate feature. So all of you should at least use auto login while going home tomorrow. मतलब कल से ऑफिस में auto login को implement कर दो। Auto login means again I repeat, credentials are same, user ID and password across भी 25-30 कंपनी जिसका भी मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरा user ID password सेम होना चाहिए। वो दो चीज मिक्स हो रही है, ये आपके लिए स्लाइड। वो कॉन्फ़िगरेशन पहले सिलेक्ट बैंक, आपको ऑटो जनरेट पेमेंट एडवाइस फॉर कनेक्टेड बैंकिंग, पहले आपको F11 में सब GOT ऑल्टर सब कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। सर इशू है कि डेटा में स्पीड जो है ना ये सब फीचर्स की वजह से बहुत स्लो हो गई। नहीं अभी आप अगर लेटेस्ट वर्जन पे जाओगे ना डाटा कॉम्पैक्ट हो चुका है, बहुत कॉम्पैक्ट हो चुका है, क्योंकि अभी तक आपने वर्जन चेंज नहीं किया ना तो पुराने वर्जन में लैग होता था, अभी नहीं होता है। थैंक यू। Their turn manual has a into automatic keys from payment to reconciliation. Now it's your turn. So मतलब आप लोग देखो मैंने बोला 15 बैंक के साथ ऑलरेडी हो चुका है। रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए for activation of the bulk upload facility. Yes. Now Bharat Connect invoices are scattered. WhatsApp से आप भेजते हो, email से भेजते हो, courier करते हो, inventory mismatch, missed payments, manual data entry, मैंने आपको भी भेजा, फिर आपको मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा, जो लाइन बाय लाइन टाइपिंग करना पड़ता है, एरर होता है, कुछ इधर का उधर हो जाता है, फिर बाद में जीएसटी और रिकंसिलिएशन के टाइम पे पता चलता है कि एक पंचिंग एरर है 565 so books don't match, so account receivable and account payable confusion, delays, trade relationship, payment chores, delayed payments, and endless follow-up, calls and reminders. कुछ सबको avoid करने के लिए let's go to Bharat Connect, a digital bridge between buyers and suppliers inside Tally. So platform B2B invoicing, payments, collection and settlement across India है. This is working within India. ये India का platform है. Seamlessly integrates with existing accounting solutions, real-time auto syncing of information across platforms, end-to-end support for all B2B transactions through one single platform. Now, National Payments Corporation of India, set up by RBI and IBA to enable secure, real-time and low-cost payments for business, banks and ULs. Key products UPI, RuPay, BBPS, NACH, BHIM, ONDC. Latest initiative Bharat Connect for Business is the latest initiative. तो कैसे काम करेगा? National Enterprise Send Invoice, Prime Electronics will accept and create purchase. Send payment confirmation, create receipt and settle bill. Payment acknowledgement, invoice is close. तो उसके बाद
आपका वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 6.0 चाहिए, प्लस चाहिए, विंडोज 11 चाहिए, विंडोज सर्वर 2022 एंड अबव, एक्टिव TSS सब्सक्रिप्शन, users should have access to GST only for business. So that's the first reach. 20 लाख 40 लाख से नीचे वाले लोगों को B2B का बेनिफिट नहीं मिलेगा. That's the first नेगेटिव. बट ठीक है, हम मान के चलते हैं कि हम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो एटलीस्ट सेल्स नंबर लेकर चल रहे हैं. So enable login for your serial number from the web page in a few clicks. तो मतलब के टैली के वेब पेज पे जाके आपका B2B आपको करना है. Yes, so one of client is having his maximum purchase from one vendor only. He is also using Tally. I am also using Tally. So ये तो blessing हो जाएगा उसमें. I was about to say कि आपका तो कट डाउन हो जाएगा like anything. Right? There must be 150 invoices करना ही नहीं पड़ेगा ना, अभी वो सीधा उसका ट्रैवल करेगा और वापस वो आ जाएगा. इन्वेंटरी का टेक केयर करेंगे. करेगा ना, मैंने वही तो आपको बताया कि समझो मैंने कॉटन फैब्रिक लिखा है. वो तो HSN शुद्ध बताया है, अगर आपके पास आइटम क्रिएटेड ही नहीं है, फर्स्ट टाइम परचेस किया, तो ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है उसका एडवांटेज क्या होगा? HSN तो आ गया लिख के, सेल्स किया तो HSN ऑलरेडी देयर. You don't have choice, but you go that HSN. जहाँ जो नाम से लिया है वही HSN बेचेगा. ऑब्वियस है, तो वही HSN वो आपको बताएगा डालने. और फिर अगर इन्वेंटरी आपने क्रिएट ही नहीं किया, मैं तो बोलती हूँ जिनका फर्स्ट टाइम नंबर लिया उनको तो प्लेसिंग इट डिसग्रेड हो जाएगा, क्योंकि आइटम HSN सब कुछ वहां से आएगा, वो जहाँ दिखेगा स्क्रीन पे उसको खाली अंडर ग्रुपिंग प्रॉपर करके करना है. लाइक रो मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, या यू नो दैट पोर्शन. The grouping is the challenge for you, but item name will be identically same if you want to keep. उन्होंने जो रखा है वही आपको रखना है. अच्छा, उसका भी मेरे पास तोड़ पानी. उन्होंने जो रखा है, फिर आपकी एक स्टाइल है, आपकी कंपनी को कुछ ट्रैकिंग करना है, तो आप क्या कर सकते हो? अलायंस यूज कर लो, अलायंस में डाल दो वो आपका वाला. सो टैली दोनों को रीड करेगी कि नाम में मिल रहा है मैचिंग, तो इट इज द सेम आइटम. सो ये क्यों अलायंस किया ना, आपको सेम में उसका रेप्लिका बता रही हूँ. When you go to 26S, it will be in the name of Sivanna Dodia, for example, या प्रकाश दोडिया, where he is a proprietor of BMP Infotech. तो आपको भी BMP Infotech का आ रहा है और TS कट के आ रहा है प्रकाश दोडिया के नाम से. तो टैली के अंदर आपको खोलना है BMP Infotech और नीचे अलायंस में प्रकाश दोडिया डाल दो, ताकि जो अगर आप मैपिंग करते हो 26S से डेटा को खींचना है आपको, at that time it will be helpful, क्योंकि उसको लेजर दिखेगा ना. So that's the solution for that. So let's just observe how it works. थोड़ा वो वीडियो में तो चलते जाएगा, फटाफट देख लीजिए. आपके साथ मैं भी रन थ्रू कर रही हूँ. So नेशनल एंटरप्राइज को कुछ बेच रहा है बेसिकली, और B2B आईडी देखो नीचे है, रोशन अरा, वो सर्च B2B आईडी कर रहा है. So GSTN नंबर से, पैन नंबर से, मोबाइल नंबर से, ईमेल मीडियम से भी सर्च कर सकते हो सामने वाले का आईडी, बराबर. और उसको आईडी मिल गया, तो यहाँ पे उन्होंने सेल्स डाला, नेम ऑफ द आइटम देखो, ये कॉटन ड्रेस मटेरियल, उस दिन तो आपको कॉटन नहीं चल रहा था, एक बार मैंने कल देखा था. So यहाँ से फिर थोड़ा तो प्रिपेयर करना पड़ेगा. और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि 800 रुपए का कॉटन ड्रेस मटेरियल ना बनारसी सिल्क में 3,500 की, प्रोजेक्ट दिख रहा है. There is a gap ना, प्राइसिंग देख के समझ में आना चाहिए. ये तुम सैंपल बनाना है तो भी ठीक से बनाओ. So do you want to share this invoice? This prompt will come. तो ये F11 में आपको भारत कनेक्ट को एनेबल करोगे तो ये प्रॉम्प्ट आएगा. So थोड़ा सा लैग रहेगा क्योंकि वो बात कर रहा है, इसलिए देखो वो बोला, उन्होंने भी दिखाया कि बोला लगेगा, but invoice is now shared. Now you go to KCS Fabric field, जहाँ पे ये देखो ये send invoice, वहां से वो दिखाएगा कि ये वाला बिल भेजना है. अभी आपने जो जनरेट किया 17,700 का 2 आइटम का, वो भेज रहा है. Invoice will send to the client. Total invoice sent successfully. Okay? तो यहाँ ये स्क्रीन से निकल रहा है. अब हम जाएंगे नेशनल एंटरप्राइज में, भारत कनेक्ट में, एक्टिविटीज में, एज अ बायर की एक्टिविटीज में जाएंगे, क्योंकि आप सप्लायर भी रहोगे और बायर भी रहोगे ना किसी और के लिए.
तो न्यू इनवॉइस रिसीव करके नोटिफिकेशन आता है, लास्ट वन 17,700 हम उसको सिलेक्ट करना चाहिए। अभी वो 25,410 को क्यों ले रहा है, वहां से उसने 17,700 भेजा था, इफ यू रिकलेक्ट। फिर कल भी थोड़ा 25,410 ऑलरेडी कल भेज दिया था वीडियो बनाने से पहले। अभी देखो ये स्क्रीन पे आपको ऐसे दिखेगा, कॉटन ड्रेस मटेरियल बना, जो रेड मार्क दिख रहा है किसी को, यहाँ पे देखो रेड मार्क है, बनारस सिल्क साड़ी के बाजू में रेड मार्क है, छोटा सा डॉट आएगा। The item which is not matching with what is sent via that invoice, it will highlighted with red. फिर आपको या तो नया बनाओ या उसी को एक्सेप्ट करो, और एक बार एक्सेप्ट किया तो नेक्स्ट टाइम वो उसको फैच करेगा, क्योंकि देन एआई विल वर्क, इट विल नोटी मतलब अपने दिमाग में स्टोर कर लेगा कि इस चीज को आप यहाँ पे डाल रहे हो करके। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? Like my vendor has generated the invoice. हाँ, So it will come immediately. उसने पूछा ना whether you want to send, वो एक साथ में वो 10 भी एक दिन के एंड में भी भेज सकता है या ऑनलाइन तुरंत भी भेज सकता है, जब वो सेंड करेगा तब आपको आएगा। ईमेल में ये आपका बिट टू बिट डायरेक्ट आ रहा है, आपको पता है वो साइन इनवॉइस तो मेल करेगा ही ना, वो आपको वो बात की बात है, आपका डेटा एंट्री का काम खत्म हो रहा है। आपको एक्सेप्ट करना है इनवॉइस हैज बीन एक्सेप्टेड, पहले आप सिस्टम को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं, नहीं तो रस शक्ति बीच में से निकल जाएगा। नाउ इट विल गो इनटू द बकेट ऑफ इनवॉइस पेंडिंग फॉर पेमेंट वंस आई हैव एक्सेप्टेड। अभी वो आएगा 25,410 के ऊपर, उसको सिलेक्ट करेगा। अभी उसको 2 बिल का पेमेंट करना है, तो क्रिएट पेमेंट वाउचर, तो नीचे देखो साथ में आ जाता है, तो वो अगेंस्ट रेफरेंस करना नहीं पड़ता फिर आप। ई फंड ट्रांसफर, अभी ये जो जहां दिखा रहा है ना, टू बी वेरी प्रिसाइज, आप जब क्रिएट करते हो ना किसी भी लेजर को, क्लाइंट के लेजर को, वहां पे भी आप प्रोवाइड बैंकिंग डिटेल्स डाल दो, तो आपकी लाइफ और आसान हो जाएगी। भारत कनेक्ट डिटेल्स को यस किया, डू यू वांट टू सेंड पेमेंट डिटेल्स टू केसीएस फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड विया भारत कनेक्ट, यू विल से यस, पेमेंट कंफर्मेशन हैज बीन सेंड सक्सेसफुली, नाउ इट विल गो टू, यहाँ पे सप्लायर में लिखेगा, वहां पे अपने बायर में लिखा, यहाँ पे वो सप्लायर में लिखेगा, और वो पूछ रहा है कि तुमको आया है नोटिफिकेशन क्रिएट रिसीट वाउचर, तो रिसीट वाउचर में डायरेक्ट फोटो क्रिएशन, बैंक खाली सिलेक्ट की इन्होंने कौन से बैंक में डालना है, दैट व्हाट सिलेक्टेड। Do you want to send payment acknowledgement to National Enterprises via Bharat Connect? So yes, acknowledgement has been sent successfully. So it's a total integrations, invoice, basis of value show, close invoices. Yes, तो वो पूरा क्लोज हो जाता है, पूरा सर्कल क्लोज हो जाएगा। तो अलग अलग रिपोर्ट भी मिलेंगे, भारत कनेक्ट का एक विंडो दे दिया है अलग से, विंडो भी आएगा, जितना सीखो उतना कम है टैली, लाइफ ही ऐसी है ना, जितना सीखो उतना कम। चलिए ये हो गया आपका भारत कनेक्ट। ऑटोमेटेड बैकअप हमने देख लिया ना, ऑटोमेटिक क्लाउड प्रोटेक्शन, फ्लेक्सिबल रिकवरी, ऑप्टिमाइज स्टोरेज, इंस्टेंट अलर्ट्स। Okay, I think this we need to see. Basically, ये देखो, sharing data with CA is very important. Share backup confidentially with your CA while maintaining complete security and control by following these settings. Add CID under user as a standard user in customer portal, control center, user management, manage user. आप लोग मेरे ख्याल से जाते ही नहीं होंगे टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट पे, खुद का यूजर मैनेजमेंट होता है, पूरा एक आपका पूरा अकाउंट रहता है वहां पे, वहां जाके आपको ऐड करना है। वैसे हम लोग तो जैसे कि अगर मैं कंपनी में जाऊं, यूजर से पासवर्ड में जाऊं,
और सपोज कि मैं यहाँ पे जाती हूँ, यहाँ पे देखो tally.net ऑडिटर करके आपको सामने वाला ऑडिटर का लाइसेंस डालना है, उसका यूजर आईडी डालना है, तो यूजर करके आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, और वो ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, अपडेट एक्सेस यस, नाउ दिस फीचर इज कम फ्रॉम 7.0, अलाउ टैली आस्क टैली एक्सेस, मोबाइल नंबर डाल के करना है तो ब्राउजर एक्सेस यस, रिमोट एक्सेस यस, लोकल टीडीएस यस, यस, तो ऐसे सब करना पड़ेगा आपको। लोकल यूजर को ना वो ब्राउजर एक्सेस नहीं मिलता है, वो भी इसमें मैं नहीं जाता हूँ फिर फालतू में। देखो मैंने ना आपको ये खाली डेमो दिखा रही हूँ, कैन यू सी दिस फाइल, ये मैंने 26 एएस से यहाँ कॉपी पेस्ट किया, आप खुद का एक एक्सेल फाइल बना सकते हो 26 एएस में से कि मेरा वाउचर टाइप क्या रहेगा, मेरा वाउचर नंबर क्या रहेगा इन टैली व्हेन आई वांट टू इंपोर्ट द ट्रांजैक्शन, नेम ऑफ द डिडक्टर एज आई मेंशन्ड, वो जो तुलानी मेटल्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड है, कहीं पे पर्सनल नाम होगा लाइक अशोक कुमार बागरी है तो वो उनका प्रोप्राइटर समथिंग एल्स रहता है, थोड़ा वो ध्यान रखना पड़ता है। ट्रांजैक्शन डेट विल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द टैली, करेक्ट। मैं क्या करता हूँ 26 ए से पूरा ये कॉपी पेस्ट करके अपना एक फाइल, तो एक्सेल फाइल खुद की बनाओ, डायरेक्ट 26 ए से हम लोग को इंपोर्ट करने का वो रखना ही नहीं है, खुद का एक अलग से, और ये फिर आप हर एक जितना आपके इनकम टैक्स के क्लाइंट रहेंगे उनके भी टीडीएस की एंट्री तो हमको करनी ही पड़ती है, तो ईयर एंड में ये एक्सरसाइज करेंगे एक साथ में निकाल के। और ऐसा है कि आप, मैं क्या करती हूँ अभी दिसंबर तक का सबका टीडीएस आ जाएगा 26 डेज, तो दिसंबर तक का एंट्री कर सकते हैं, फिर टेम्पलेट में जाके ना आप बोल सकते हो कि मुझे अभी 21 तक एंट्री हो चुकी है, तो नाउ इंपोर्ट ट्रांजैक्शन फ्रॉम 22 ऑनवर्ड्स, खाली जैन से मार्च का बाकी रहेगा जो नीचे पेस्ट करेंगे अपन, डिपेंड्स, क्योंकि देयर आर ऑलवेज चैलेंजेस, क्योंकि काफी सारे क्लाइंट ने पूरे साल में नहीं किया रिटर्न और मार्च में ही किया, बट ट्रांजैक्शन डेट में भी डिफरेंट, सो दैट कॉल यू हैव टू टेक कि अभी लेटेस्ट 26 एएस जो आप डाउनलोड करते हो और पुराना पहले मैच कर लो वी लुकअप से, और जो नई ट्रांजैक्शन आई है वो नीचे डालो, थोड़ा सा टेक्निकल है बट समझा रही, वो तो डे टू डे ऑपरेशन जो करते हैं उनको पता ही रहता है, दे हैव टू टेक केयर ऑफ द डेटा व्हेन दे वर्क विद द डेटा। ये जो मैंने बनाया है एक सैंपल आइडिया दे रही हूँ कि आप बहुत सारा काम कर सकते हो, जिनके पास बहुत सारा एक्सेल में डेटा आता है और हमें मैन्युअली डेटा एंट्री नहीं करनी है, तो हम इसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। तो इनकम लेजर टू बी क्रेडिटेड मैंने यहाँ लिखा है, अगर एक ही टाइप का है तो आप टैली के अंदर लिख सकते हो स्पेसिफाई लेजर करके, यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम, रेंट इनकम अलग अलग टाइप में रहेंगे, तो आपको मैंने ये सैंपल बनाया इसके लिए बोला है कि इनकम लेजर टू बी क्रेडिटेड, इंटरेस्ट रहेगा तो इंटरेस्ट लोन इंटरेस्ट व्हाटएवर नेम यू है, बैंक इंटरेस्ट रहेगा, एफडी इंटरेस्ट रहेगा। ये क्लाइंट है जिनका स्पेसिफिक कमीशन इनकम का ही था स्क्रीन पे जो मैंने सैंपल दिखाया था। So this is full entry and then one is something clear entry भी करनी है तो अलग से भी आप बना सकते हो। फुल एंट्री का मतलब मैं क्यों कहती हूँ कि अगर क्लाइंट की बैंक ऑलरेडी लिखी हुई डेटा आपके पास आता है एंड यू आर ओनली फाइनलाइजिंग द डेटा, और आपको खाली 26 एज करना है, तो आप खाली टीडीएस एंट्री का भी टेम्पलेट खुद बना सकते हो ना कि डेबिट टीडीएस एंड क्रेडिट दैट क्लाइंट, सिंपल। और यहाँ मुझे फुल एंट्री डालनी है तो ऑब्वियसली आई विल डेबिट द क्लाइंट, डेबिट द टीडीएस अकाउंट एंड क्रेडिट द इनकम लेजर, आर वी गेटिंग। तो उस हिसाब से मैंने मेरे को एक केस स्टडीज आपको देनी थी, एक बार 26 एज किया तो ऐसे परचेज सेल्स का कुछ खाली आपको मैपिंग करना है और कुछ रॉकेट साइंस। तो अभी अगर मुझे करना है यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं,
आता एक ये इंपोर्ट दिखा देती हूँ पैसा नंतर होगा 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी प्लीज मेरे को तो टैली में टाइम ही कम करना है भूख सबसे ज्यादा मुझे लगती है ओके आई जस्ट स्पेसिफाई द पाथ कंट्रोल बी एंटर ये मैंने कंपनी का नाम भी एबीसी लिखा है सबको ऐसा आता है ना माइग्रेशन रिक्वायर्ड ग्लोबल वर्जन रहेगा तो So मुझे बैकअप नहीं चाहिए right now, so I'll say no and then control A and then migrate. तो ये हो गया माइग्रेशन अब हम जाके देखेंगे डिस्प्ले अकाउंट लेजर PDS AY 2526 और ये कौन सा है हमारे पास 24 का तो हमें जाना है 24 ट्रांजैक्शन इज फॉर 24 ना तो पीरियड चेंज करना पड़ेगा 1/4/24 से लेके 31 मार्च 25 लेजर TDS AY 25 and blank to blank transaction is not there बराबर है 24-25 है तो असेसमेंट है 25-26 हो गया TDS का ओके नाउ एक्सेल फाइल रेडी है आपको इंपोर्ट में जाना है मैनेज में जाना है मैपिंग टेम्पलेट में जाना है और उसके बाद मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है आप जाओगे तो आप क्रिएट में जाओगे फर्स्ट टाइम बनाओगे तो अब मैं ऑर्डर में जाऊंगी फुल एंट्री TDS मैंने नाम देके रखा है उसका आपको पहली बार खुद को नाम देना अभी मैं वापस स्पेसिफाई बात करूंगी कि यहाँ से मेरी फाइल उठानी है ये एबीसी एक्सेल फाइल मैंने खोल के रखी है आपके पास इसका नाम है एबीसी ये जो फाइल है इसका नाम एबीसी है तो ये एबीसी में मैं जाऊंगी शीट का नाम लिखा है फुल एंट्री में मैं जाऊंगी तो ये फर्स्ट स्क्रीन है जब क्रिएट स्क्रीन होगा ना तो आपको ऐसे दिखेगा तो पहले वो पूछेगा ऑल कंपनीज या किसी कंपनी के लिए चाहिए वो पूछेगा दिस कंपनी ऑल कंपनी ऑन दिस कंप्यूटर या दिस कंपनी तो मैंने अभी ऑल कंपनी लिख के रखा है या आप दिस कंपनी कर सकते हो क्योंकि वो सबका अलग अलग रहता है ना फॉर्मेट अलग अलग रहता है सो फुल एंट्री TDS मेरे से दब गया तो मुझको फिर से अकाउंटिंग वाउचर में वाउचर टाइप नेम इज मैंडेटरी मैंने बैकस्पेस मार के आपको दिखाया है आपकी एक्सेल शीट को आपको वो दिखाएगा स्क्रीन पे यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम दैट एक्सेल शीट व्हिच पर्टिकुलर कॉलम यू विल मैप विद दिस तो वाउचर टाइप ऑब्वियसली मैं नाम भी वही देती हूँ ताकि मुझे इजी हो जाए ट्रैकिंग करना वाउचर टाइप वाउचर डेट अभी आप राइट साइड में देखिए मैंडेटरी लिखा है तो जो चीजें मैंडेटरी है वो आप दोगे ही नहीं तारीख को तो आपका एक्सेल टेम्पलेट इंपोर्ट काम नहीं करे आर वी गेटिंग पल्ले पड़ रहा है कि सब ऊपर से बाउंसर सब मेरे साथ है जुड़े हुए ये सच्ची में क्रांति है मैं एक सैंपल दे रहा हूँ आप कुछ भी जो भी डेटा आपको डालना है मैंने बीच में वही बोला कि मेरा समझो एक ब्रांच का एंट्री हो चुका है उसका रेप्लिका करना है तो ब्रांच में यहाँ जो एंट्री हुई उसको एक्सपोर्ट मार दिया यहाँ जितना पेमेंट था वो उधर रिसीट करना है जो भी करना है अगर ऑनलाइन एंट्री ले लिया जर्नल एंट्री ये टाइम पे बहुत इजी हो जाता है यहाँ से जर्नल एक्सपोर्ट मार दी वहां पे राइट पे ले लिया और एक्सेल में ले लिया और एक्सेल में फिर थ्रू फिल्टर मार के ट्रांजैक्शन कौन से लेजर में जाना चाहिए वो डाल दी और फिर यहाँ एक टेम्पलेट होगा अभी चलते हैं वाउचर डेट तो ट्रांजैक्शन डेट विल बी द वाउचर डेट वी विल कीप ऑन सिलेक्टिंग वाउचर नरेशन मैंने स्पेसिफाई इस वैल्यू लिखा है क्यों क्योंकि मैं ये एंट्री फॉर्म 26 डेज डाल रही मेरे पास और कोई बेस नहीं है हाँ देन टॉप लेजर्स तो टॉप लेजर में हम लेजर का नाम डालेंगे कि किसको लेना है तो नेम ऑफ द डिडक्टर तो मैं फिर से आपको एक बार ये स्क्रीन दिखा देती हूँ तो यहाँ पे नेम ऑफ द डिडक्टर इज विल बी डेबिटेड तो आप एंटर करके खुद को लिखते जाना है फिर लेजर में सेकंड नाम आया तो अमाउंट चाहिए लेजर का तो टोटल अमाउंट पेड डिडक्टर वाइज ये जो है ना यहाँ पे मैंने फॉर्मूला डाल दिया है 26 में खाली क्रेडिटेड आता है डिडक्टेड आता है और जो टोटल अमाउंट पेड डिडक्टर वाइज में दिस माइनस दिस करके मैं फॉर्मूला सेट कर देती हूँ
तो वही कॉलम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। फिर लेजर अमाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा टैली के अंदर, वो आपको स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू करना है, तो वो वहां जाके आपको डेबिट को सिलेक्ट करना है। फिर ये होगा एंड ऑफ दिस। अगेन सेकंड डेबिट मुझे देना है टीडीएस अकाउंट को, तो टॉप लेजर्स लेजर में स्पेसिफाई फिक्स करेंगे, क्योंकि टीडीएस अकाउंट तो मेरा फिक्स ही है। आप यहाँ पे टीडीएस 4 AY 25 चलता, देखो वहां पे कुछ और ही था, बनता था, तो मैंने सिलेक्ट कर ली। सो यहाँ पे ये आ गया टैक्स डिडक्टेड लेजर अमाउंट, ये भी डेबिट हो जाएगा तो डेबिट। और बॉटम लेजर में मेरा इनकम लेजर टू बी, यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है इनकम लेजर टू बी क्रेडिटेड फ्रॉम द एक्सेल शीट। फिर वो लेजर अमाउंट तो कितना क्रेडिट होगा, जो टोटल वैल्यूएशन था में, और हमने इसको कंट्रोल ए सेव कर दिया। अब हम ट्राई करेंगे इंपोर्ट करने की ट्रांजैक्शंस को। तो इंपोर्ट करके हमारा क्या है, ट्रांजैक्शंस, ये है डिफॉल्ट एक्सेल स्प्रेडशीट। फाइल का नाम देखना है आपको, चेक करना है, फुल एंट्री चेक करना है, फुल एंट्री डीडीएस, शीट का नाम पूछ रहा था और टेम्पलेट का नाम डालना, और फिर वो दिखा रहा है अच्छा एंट्री है करके, तो आप इधर जाके काउंट देख सकते हो। कितना है काउंट, काउंट में चेंज क्यों है? और 850, ये देखो 1 सेकंड में एंट्री हो गया। पता चला मैं ना वो फाइल को दूसरी उठा रही है, समझा नहीं समझा? सेम नाम की फाइल कहीं पे भी हो सकती है। एनीवेज टीडीएस 61850, मुझे कुछ आप देखो ना नंबर्स 432 के मैंने ना ये डेमो फाइल है ना, तो बार-बार मैं करती हूँ, फिर डिलीट करती हूँ। तो जनरल नंबर वो अपना क्रोनोलॉजिकल आगे चल जाते हैं। अब आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन, तो दानी अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम, ये देखो 19 1 और 20। आगे विद मी, समझा आपको? मैंने खाली मैप किया, खाली 10 मिनट आपको इन्वेस्ट करना है, 10-15-20 एक बार इन्वेस्ट किया ना, तो खाली सीधा सीधा वो खट करके 15 हो गए, 1500 हो गए, वो हो जाता है, समझे? और एक था समझोगे जी, आ जाइए आप क्या, हाँ ये पूछो। So reverse journal works for the quarterly. It's a scenario. It's a scenario कि मुझे मेरे कोई भी क्लाइंट है, for that matter the manager या आपके एंटरप्रेन्योर्स को क्वार्टरली रिपोर्ट चाहिए और डिप्रिशिएशन इज अ ईयर एंड फीचर, तो हमें वो एंट्रीज पास नहीं करनी है टैली के अंदर। So what we will do is that we will use the reverse journal. Suppose के टेम्पररी अपन इसमें ही चले जाते हैं, क्या होता है पब्लिकली इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है, ऐसा मतलब क्या? तो हमारे पास ट्रांजैक्शन ड्रिवन डिप्रिशिएशन बट एसेट भी हो गया है। हमारे वही कर रहे नहीं एबीसी है ना, एबीसी अपनी डमी कंपनी उसमें करते हैं। तुम्हारा एकदम भूख लगी है, हाँ फिक्स करते हैं, हाँ फिक्स करते हैं, फिर लॉजिक डिजाइन कुछ होगा तो बताने को भी इजी रहता है। मुझे इतना याद नहीं था इसके पास कुछ शेयर के लिए, ठीक है। सो ज्यादा करके हमें क्या करना होता है, एंट्री मारना होता है। तो हम समझो कि दिसंबर में खड़े थे, हमें उनको क्वार्टर एंड दिसंबर का पब्लिक कंपनी को दिखाना है।
सो पहले क्या करते हैं हम, ये 11658 इंटू 15% करेंगे, फिर जो भी है डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 9, बराबर। डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 9। तो मैं ना पहले रेडी करके रखता हूँ फिगर को, 1311, कुछ भी फिगर है 1311। अब मैं एंट्री करूंगी आपके लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, ये भी गलत कर रहा हूँ, ऑल्ट जी, ये वाउचर करके भी है हमारे पास, ये ऑल्ट जी द कॉस्ट ऑफ फीचर। अभी यहाँ पे जर्नल दिख रही है तो अदर वाउचर में जाइए आप और टाइप कीजिए रिवर्स जर्नल। जब आप टाइप करोगे आपको पूछेगा, अगर आपने कभी भी नहीं किया है, शुड आई एक्टिवेट द वाउचर टाइप, यू शुड से यस। So water type will be generated. Now हमको 31st दिन आप मंथली रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो 31st मई 30th अकॉर्डिंग यू हैव टू स्पेसिफाई द डेट। रिवर्स जर्नल वर्क्स ऑन अप्लीकेबल डेट। तो अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं डालूंगी 31st दिसंबर। सो यहाँ पे नीचे एप्लीकेबल अप टू 31st दिसंबर आ गया। फिर हम डालेंगे डेप्रिसिएशन और सी, और फिर नीचे का फिगर उठा के पेस्ट कर देते हैं और क्रेडिट करेंगे। क्या नाम था एसेट का, तो अभी ऐसा सिचुएशन आता है, अगेन ऑल्ट जी इज योर सेवियर, यू गो एंड गो टू बैलेंस शीट immediately and go to 6%, the way we went there 6% or 10%, active total cost। तो ये क्या हुआ, मैं ट्रांजैक्शन के अंदर हूँ और मुझे देखना है, तो ये लाइव डेमो मैंने दिखा दिया। ऑल्ट जी द ब्यूटीफुल फीचर कि आपने एक रिपोर्ट को अपने बना के रखा है और अचानक तुमको कोई लेजर देखने का दिमाग में आता है, या किसी का फोन आ गया, उसको आउटस्टैंडिंग का फिगर इमीडिएटली देना है, डोंट डू ऑल्ट जी शुड बी योर सेवियर। तो ऑल्ट जी में जाके अब मुझे जाना है मेरी ट्रांजैक्शन जो चालू, तो मैं स्विच टू शो ओपन रिपोर्ट पे क्लिक करूंगी तो मुझे दिख रहा है क्या मेरा रिवर्स जर्नल दिख रहा है ना। तो जितने ओपन रिपोर्ट है वो भी आपको दिखते हैं ऑल्ट जी में। तो मैंने स्विच टू फंक्शन भी बता दिया। ऑल्ट जी मींस while I was in transaction, I remembered something. I went to the balance sheet. I found out what is the name of the ledger. Now again, switch to function के हिसाब से मैं accounting voucher creation में वापस जाऊंगी और क्रेडिट कर देंगे, एंटर करेंगे और कंट्रोल ए करके बाहर निकल जाएंगे। बंद करो, एंट्री दिखेगी नहीं। It's a ghost entry. It's a ghost entry. In the sense, it is not parked into the tally. Basically, not into the main books account. It's only for the reporting purpose I have created this transaction. Okay. So, ज्यादा करके हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, भगवान मालिक अंदर एंट्री भगवान मालिक, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई चिंता नहीं है, हर मर्ज का इलाज है हमारे पास। ऐसा कि भाई कुछ 12 लाख तो दिख रहा है ना प्रॉफिट, अभी 12 लाख दिख रहा है, 1269 पे अपन खड़े, अभी अपन करेंगे ऑल्ट सी, बराबर, और हम करेंगे 31st दिसंबर 25, बराबर, और हमने क्वार्टरली रिपोर्टिंग करके सिनारियो बनाया है और उसको एंटर करेंगे। देखो 1269 1267 आई हैव डन इट, समझ गया। रिवर्स एंट्री फर्स्ट जनवरी को पास होगी, कहीं पे भी पास नहीं होती है, वो 31 दिसंबर के रिपोर्टिंग के लिए खाली स्क्रीन पे होता है, क्योंकि वो अपने आप ऑटो रिवर्स है ना, एक को दिखेगी ही नहीं, वैसे भी वो बुक्स में सेम ट्रेन में ही रिवर्स ही है। 31 दिसंबर तक अगर हम लोगों ने रिपोर्ट मिल गया तो दिखेगा स्क्रीन पे दिखेगा, स्क्रीन पे, और ऑल टेक फिर एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दो, ट्रायल बैलेंस सेव करके रख लो कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरा एक कभी यहाँ पे ना वो उनको वोट ऑफ टैक्स देना, मैं 3 चीज और दिखा दूंगी तो कंपनी अंडर निकली। सॉरी माय बैड, आई एम सो सॉरी, थोड़ा होमवर्क कम किया है मैंने आज, नॉट फेयर ना। वापस जाना पड़ेगा। मुझे वापस बुलाओ, मैं तो वही चाहती हूँ। मैं 5-10 घंटे नहीं सिखाऊं टैली तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है। सबके पास ऐसी स्क्रीन जनरली रहती है, उसके बाद ना ऑल्ट एन यूज किया कीजिए,
ये देखिए ऑल 10 में इतने सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आपको क्वार्टरली रिपोर्टिंग चाहिए तो सीधा क्वार्टर वाइज दे देगा आपको प्लॉट करके। सो ऑल्ट एंड फीचर्स यूज कीजिए प्लीज। ये आपको ना जीएसटी में भी बहुत काम में आएगा। वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस प्लॉट करके देखना है आपको क्वार्टरली, हर क्वार्टर का एक साथ में काम में जुड़ना है। हाँ, एक अच्छा वाला क्लिक, फिर मुझे तो ऐसे बैठना पड़ेगा। देखो थोड़ा एंटरटेनमेंट रखो, लाइफ में इतने सीरियस मत रहो रे। थैंक यू सर। सी द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ना, ह्यूमर जब भी मिलता है ना ले लो। मैं तो बोलता हूँ मैं हमेशा खुश रहती हूँ, पता नहीं मुझे तो, मैं 10 मिनट से नहीं 5 मिनट से ज्यादा दुखी हो नहीं सकती, ये मेरा लाइफ का फंडा है। गुस्सा आया तो भी वो भाप की तरह निकल के खत्म, दूसरे काम पे चले जाते हैं। चलिए, तो ऑल 10 प्लीज यूज कीजिए। वो आपको ग्रुप कंपनीज साथ में लेनी है, F3 करके आप दोनों कंपनी को प्लॉट कर सकते हैं, एक साथ में सब रिपोर्ट देख सकते हैं। ऑल 10 को प्लीज एक्सप्लोर कीजिए। मुझे सॉरी है कि मेरे पास टाइम बहुत कम था। थैंक यू मैम। एनी क्वेश्चन? बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए ना, एनी डाउट्स? एक दो ले सकते हैं। हाँ, I have got more than 150 sales entry. उसके साथ मैं अपलोड करता हूँ। Against that, I have a 20-30 sales return entry. Upload because of that against that. हो सकता है कि बस टेक्निकल है। पेमेंट वहां से वो तो आपको देखो, आप सेल्स रिटर्न अपलोड करोगे तो वो तो बनाने के टाइम पे आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर लिखना ही है, क्रिएट करने के टाइम पे, तो आप तो अगेंस्ट रेफरेंस ही करोगे ना। तो यहाँ टेम्पलेट बनाना है ना, टेम्पलेट बना के भी आप ये काम कर सकते हो। ऑफ कोर्स उसमें बिल एलोकेशन को सिलेक्ट करना, वाइल टेम्पलेट क्रिएट करते हो ना, देयर इज अ बिल एलोकेशन, बिल नेम, बिल रेफरेंस। तो मैं ट्राई करता हूँ। हाँ, उठाओ ये कॉलम से बिल रेफरेंस उठाओ सारा, तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर विल बी वन कॉलम, सो एज सिंपल एज दैट। तो आप ऑफलाइन तो बहुत कुछ सीख सकते हो हमसे, और हम ना कस्टमाइज काम भी करते हैं, और hourly 5,000 is my charge for training. It's very simple. 5 लोगों के लिए। कंपनी बोलेगी 25 को सिखाओ तो चार्ज बढ़ जाएगा। Anyways, please keep learning. That's the message from my side. And be happy, be enjoy the life. एक ही लाइफ है, कोरोना के बाद तो साला सब एक बोले बोनस अच्छे है ना, तो खुश रहो। थैंक यू वंदना मैम। फ्रेंड, वंदना मैम का नंबर सबके पास में है, नहीं है तो हम दे देंगे। Google allowed, man. Any query relating to Tally, you can ask her. Ma'am, really, today's session was truly insightful and practical, enriching. Friends, we often believe that we know Tally well because we use it daily. But today's session clearly showed us that there is a significant difference between using a software and mastering it. The way CA Vandana Dodia ma'am explained the power feature of Tally 7 was extremely practical and implementation oriented. What I personally observed is that many of these features were available to us for years, but awareness was missing. Today's session was filled that gap. Now I request our past convener, CA Seema Mehta, to give a vote of thanks on behalf of our station below. Vote of thanks. Thank you, Kailash, to give me opportunity to present vote of thanks to my dear friend Vandana. Really, she is a
this is a technical come motivational program actually. So thank you, Vandana, for explaining power features and hidden gems of Tally Prime 7. She explained lots of features like Alt-F can be used across company, Tally Drive, and auto-selected companies, and so on. And she also answered all the questions raised by the participants. Presentation was really very nice. Thank you, Vandana. And please carry a loud sound effect. Thank you. Yeah, we will break for 15 minutes. Please come as early as possible because the speaker is already here. Thank you. पोस्ट करेगा ना अभी? Yes, Vandana. अमेजिंग। थोड़ा प्रिपरेशन कम था। अरे टाइमच नहीं है ना, बीसीएस कल्चरल इवेंट चालू है, उधर ड्रामा में पार्ट ले रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, और इनका 4 दिन पहले फोन आया था, अरे कहाँ से लाऊं, तो 4 दिन